much for joining, and just a short introduction. I am Rishabh. I am going to take you today in the right business model are made in heaven. Is it right or wrong? I don't know. Nobody knows. But in our business, we reach new people with same message or reach same people with new message. So whatever we do, we call it a business. But is this a business or business is something else? So we'll try to understand. But there is an interesting story today. While we are talking, while we are together in this workshop or a special session, the business model leaders of the world are together today. And today is very special day. Amazon, Apple, Facebook and Google, they are going to testify amongst the Congress. There is a special hearing in Washington going on. These four people, you all know, we all know, they have developed the business model to the greatest height, whether it's an aggregator, it's a marketplace, or it's a subscription model. They have done the best in the world, and today they are all together. This is the first time when Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai will appear for questioning together. And questioning by whom? By the government authority in Washington. And they will be asked a question on digital marketplace competition. Yes. So this is going simultaneously today. Before we come to the discussion on the digital business model, first of all, I want to tell you a very unique thing about the digital business models. These are the people who are top 10 in the world, and they are called digital billionaires. ये digital करोड़पति अरबपति लोग हैं. They have got their fortune created in their first generation. They didn't get any legacy. No, जिसे कहते हैं कोई वसीयत नहीं मिली इनको. They have created their own future, their own personal wealth, all digitally. And not only their own personal wealth, the brands they created are more valuable than their personal worth. You can look at these brands: LinkedIn, Amazon, WhatsApp, Microsoft, Tencent, Dell, Google, Oracle. The brands created by them are more valuable than their personal worth. How they did it, how they achieved it, and that too in one generation. That is something really fascinating to know. So today we are going to take up 4 case studies, as I promised to you, and we'll discuss. But before that, let us see who are the winners in 2020. I pray for your health and fitness, because this is the time to work on health and work from home. But business health is equally important. Certain businesses have grown even in the toughest time for the world. For example, Netflix, Zoom, they have grown very high in terms of revenue, in terms of market share, and in terms of their outreach. How did they did it? We'll understand during the course. But before that, there is a study conducted by Financial Times UK for top 100 company who added their market cap in last 3 months during the COVID pandemic. And these are the top 10 companies in front of you: Amazon, Microsoft, Apple, Tesla, Tencent, Facebook, Nvidia, Alphabet, PayPal and T-Mobile. One common factor: digital. Tesla is an automobile company, but they are actually a digital car company. And this is the kind of market cap they have added. Now, fortunately, we also have in the list of 100 one company from India, and we all know that is Reliance Industries Limited. The study was published in June. From June to July, they have actually, Reliance has notched up in the top 10 list. They have ranked up very fast as a digital platform, which they have built. They started building this platform much before COVID, but during the COVID,
everyone knows that technology is how important for every business. But there is a sad story also. There is a sad story that many big companies, big brands are going into red. They are going down under. They are filing bankruptcies. Started with Diamond Offshore, Whiting Petroleum, JC Penney, Hertz Car, Gold Gym, J. Crew, GNC, 24 Hour Fitness. These companies are now getting bankrupt because not because the business is not good. Their business model has flopped. Their business model could not survive the threat of COVID-19. Now, today, this is the right time to understand with a case study. So let me explain to you. I'm just hiding this. Yeah. Is it visible now? The screen is perfectly visible? Yes, yes. Okay. So Starbucks started 49 years ago, 1971. Started by an entrepreneur who was working in a masala company. 1987 they bought stores in United States, and finally in 1992 the company went for public for an IPO. By 2009 they had 17,000 stores in 56 countries, and in 2019 they had an annual revenue of 26.5 billion and brand value of 11.7 billion. But in 2020 they are now facing a problem of sales, and they are closing their stores. They are focusing on online delivery, online ordering and home deliveries, which they never did in the last 49 years, but now they are forced to do that. So in one quarter itself they have taken a loss or taken a hit on P&L by $3 billion. The brand, as per their current CEO, he says that the brand is resilient, the customer affinity is very strong. People who like Starbucks coffee will definitely come back, or they will reach out to them, and they believe that the difficult time will be very soon be over. Now come to the next case study, because these 4 case study will quickly take up, and then there is a connection which I will reveal to you what is the connection in all that. So next case study is Amazon. 26 years ago Jeff Bezos started with $250,000 invested by his parent. 1994 he sold books in 50 states and 45 countries in first 2 months. You know what he did? He just created a list of 20 items which he can sell online. Only 20 items. So he started not with the, today he's, I think probably might be selling 20 million items or maybe more. But he started in 1994 with 20 item list, and the biggest item he started with was books. Sorry, I think there is some. Is it visible now? Sorry, there was some problem. Is it visible now? Yes, yes. Okay. There was some problem. Show video, video panel. Okay. So he started with books. By 1997, he launched his IPO. In 3 years, he launched his IPO, issued share at that $18 per share. 2001, he declared first time profit. At the revenue of 1 billion, the profit declared was 1 cent per share. By 2011, Amazon was having 30,000 employees. 2015, they surpassed market cap of Walmart. Amazon video and music streaming was started. By 2016, 180,000 employees worldwide. In 17, he acquired Whole Foods, 400 stores at the value of 13.4 billion. And now in 2018,
sorry, this is 2020 and there is a typing mistake. By 2020, last 3 months he had added $400 billion worth of market cap even during the COVID time. And now by 2021, they are planning 3,000 Amazon Go stores in USA. You know what is Amazon Go store? You can go to Google or YouTube and see their video. Amazon Go store is a cashier free store. There is no cashier. If you go in the store, pick something, come out of the store, billing will automatically happen. So they have invested on technology, on sensors, on billing softwares, so that the customer can get personalized experience in the store without any person help, plus without any hassle of check-in, check-out, login, long queues, etc. Nothing. 3,000 Amazon Go store in USA. Probably in world they will open more stores. What is the secret sauce of Amazon? So there are 5 points on the left hand of side, but before that we'll understand what Mr. Bezos says. If you do build a great experience, customer tell each other about that. Word of mouth is powerful. So in digital and social asset building, your community is very important, and your community is nothing but your customers. And your customer can be the people who buy from you, or the people who supply to you, or the people who work for you. Everybody is a customer. So customer is not something the guy who buys from you. If you have happy employee, they are also your brand ambassador. If you have happy vendor, they are also your brand ambassador. And in this tough time, the family businesses are more successful because they run their entire ecosystem like a family. So Amazon also believe in that, but they use technology extensively. They are customer centric, they have speed, but they have control. In 2009, if I bought a book from Amazon, after 11 years also, they recognize me, they remember me. And that's the power of technology, which other retailers was not having. So they lost the market share to Amazon. So strong buying power they have. Now they are engaging with the customer with gaming, music, videos. All are creating customer engagement. कस्टमर को बांध के रखना है, उसको जाने नहीं देना है, और साथ में डेटा इंटेलिजेंस. सो दिस इज द सुपर कॉम्बिनेशन which makes them a superpower in retail today. Now let us discuss something called Zoom. I think few of only people will know. Before COVID, we never knew what is this Zoom all about. For video conferencing, for VC, the one name which was there in everybody's mind was Cisco, or Microsoft Team, or Google Meeting, or GoToMeeting, or there are so many other software. But during COVID time, the one which actually created a boom was Zoom. Started in 2011, just 9 years ago. Not very old company. Started by Mr. Eric Yuan with 40 engineers. 2013 में उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया. $6 मिलियन सीरीज ए क्वालकॉम कंपनी जो चिप्स बनाती है उससे उन्होंने रेस किया. 2015 में ऑर्गेनाइजेशन 65,000 ऑर्गेनाइजेशन जूम को यूज़ कर रहे थे 4 साल के अंदर. 40 मिलियन यूज़र थे उनके दुनिया में, जो कि 2013 में सिर्फ 1 मिलियन थे. तो आप देखिए 2 साल में 1 मिलियन से 40 मिलियन रीच किया. ये कोविड के समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2013 से 15 की बात कर रहा हूँ, जब कंपनी मात्र 3 साल 4 साल पुरानी थी. 2017 में उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन टच कर गई, तो उनको यूनिकॉर्न बना दिया गया. आई एम यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स. आई होप यू गाइज विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज देर आर लॉट ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल एज वेल एज इंग्लिश. सो आई एम ट्राइंग टू डू जस्टिस विद बोथ. 2017 में दे इंटीग्रेटेड देमसेल्फ विद स्लैक, सेल्सफोर्स, स्काइप. तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग ऑलरेडी करते थे स्काइप, तो उनका कॉम्पिटिशन भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसके साथ भी कोलैबोरेट किया. ये बिजनेस मॉडल स्ट्रेटेजी में आता है, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. 2020 में दे लिस्टेड विद नेस्डेक, और 2020 में तो हम सभी जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, स्कूल्स, बिजनेस क्लाइंट्स, हर कोई जूम पे आ गया है. अभी हमारी मीटिंग भी जूम पे हो रही है. इट इज़ ईजी टू सब्सक्राइब, नो सेल्समैन नीडेड टू क्लोज द डील. आपको जूम का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए किसी सेल्समैन को फ़ोन नहीं लगाना, आप उसके फ्रीमियम मॉडल पे जाते हो. उनका मॉडल फ्रीमियम है. जूम इन जूम आउट, बट नेवर लूज योर फोकस. तो दे नेवर लूज द फोकस फ्रॉम द कस्टमर. देयर मॉडल इज फ्रीमियम. दे
टेल यू टू सब्सक्राइब फॉर इट। पहले फ्री देते हैं, 40 मिनट फ्री देते हैं, 100 लोगों तक की कॉन्फ्रेंसिंग फ्री देते हैं। फिर जब आपको आदत लग जाती है तो उसके बाद सब्सक्रिप्शन आप उससे पहले ही ले लेते हो। फिर सब्सक्रिप्शन के बाद में धीरे धीरे अपग्रेड का गेम शुरू होता है। यू हैव टू डू ईजी अपग्रेड्स। तो आपका बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगा, इनके पास सोल्यूशन भी ग्रो करते रहेंगे। देन दे डू लॉट ऑफ प्रोडक्ट अपग्रेड्स। वो अपने प्रोडक्ट के फीचर को स्टैटिक नहीं बनाते, वो अपने प्रोडक्ट के फीचर को अपग्रेड भी करते रहते हैं। एंड दे कोलैबोरेट विद देयर कॉम्पिटिटर ऑल्सो। गूगल मीट के साथ भी जूम का कोलैबोरेशन है, स्काइप के साथ भी है, स्लैक के साथ भी है, सिस्को के साथ भी है। तो दिस इज द न्यू फीचर ऑफ बिजनेस जो बहुत सारे MSME अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे हो जाता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉम्पिटिशन। द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन एंड हाउ यू कैन डू कनेक्ट विद योर कस्टमर। अगर हम केस स्टडी में इंडिया को शामिल ना करें तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर इंडिया। वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। देर आर इंडियन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। 9 साल पहले रितेश अग्रवाल 18 साल की उम्र में ही स्टार्टेड इन 2011 ओयो एज एन एग्रीगेटर थे। स्टार्ट किया, बड़ा सोचा है या बड़ा करना था। 2013 में अपॉर्चुनिटी ने स्ट्राइक किया। पेपाल के ओनर जो हैं पीटर थील की फेलोशिप इनको मिली। 2 साल का प्रोग्राम था, अमेरिका जाके उसको करना होता है। $100,000 भी मिले। मेरे ख्याल से $100,000 वॉज नॉट अ बिग सम, क्योंकि 2 साल अगर आप US में रहते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ता है। 2014 में जब वापस आए तो सीरीज A फंडिंग हो गई, बिकॉज when you connect with right people, that is also very important in your business model. You should know who are the leaders and try to connect with them or try to emulate them. If you cannot connect them, then try to see where they failed and where they succeed. This is very easy, but do some research before you start your business. So 2015 में Lightspeed, Sequoia और अदर कंपनीज ने 25 मिलियन फंड किया। उसी साल 2015 में सॉफ्ट बैंक ने 100 मिलियन फंड किया, तो 2000 होटल 100 शहरों में उन्होंने एग्रीगेट कर लिए। 2018 में आते आते $1 बिलियन की फंडिंग भी मिल गई, जिससे उनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन चालू हो गया। UK, UAE, इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया सब जगह पे ओयो का परचम लहराने लगा। US में भी पहुंच गए। 2020 में होटल इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा है, ऑफ कोर्स ओयो को भी लगा है। बट ओयो का जो बिजनेस मॉडल है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज 1.2 मिलियन रूम्स हैं 800 शहरों में। बट ओयो विल नॉट गो बैंकरप्ट बिकॉज दे आर नॉट असेट हैवी, दे आर एग्रीगेटर। असेट लाइट मॉडल है। होटल के मालिक को शायद प्रॉब्लम आ रही है कि फिक्स खर्चे कैसे निकाले, लेकिन ओयो को अभी ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है कि ओयो को प्रॉब्लम है। उल्टा ओयो नाउ एक्वायरिंग असेट्स एंड प्रॉपर्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड विच आर अवेलेबल एट अ डर्ट चीप प्राइस, almost at the 1/3 of the price, because the owners may not be able to sustain or survive. So that could be an opportunity, but they may not buy, they may not acquire, they may have some different strategy. So 43,000 होटल है उनके पास। और रितेश अग्रवाल का कहना है कि जो चीज़ हासिल करनी है, अगर दुनिया में कुछ ठान लो तो मिल जाता है। अभी तो उम्र अंडर 30 चल रही है, बट लॉट ऑफ स्कोप इज़ देयर, क्योंकि स्टारबक्स जो 49 ईयर्स में पहुंचा है, अमेजॉन 20 साल से ज़्यादा है, तो अभी तो ये 9 साल ही उनको हुए हैं। So there are 4 models today we'll discuss. फ्रेंचाइजिंग मॉडल। फ्रेंचाइजिंग में बिजनेस आपको बिल्ड नहीं करना है, आपने बिजनेस की प्रोसेस बिल्ड करनी है। बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी में बिजनेस करने लग जाते हैं, तो बिजनेस करने से फ्रेंचाइजी नहीं चलती है। आपको बिजनेसमैन बनाने हैं अपने आगे, जो आपका बिजनेस चलाएंगे। आपको उनको मॉडल देना है, डायरेक्शन देना है, और हर फ्रेंचाइजी में से उतना ही पैसा लेना है जिससे कि वो फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल चल सके। आई हैव सीन मैनी फ्रेंचाइजी फेल्स, typically because the franchisor is not ready to share the profit. He want to make the profit, he want to take the brand valuation, he want to take everything. तो जब सब कुछ आप ले लोगे तो फ्रेंचाइजी के पास कुछ नहीं बचेगा और वो आपका फ्रेंचाइजी छोड़ देगा। He will feel cheated, he will leave it. So you will not grow. Then entire economics will fall down. So we have to see how these companies have built the franchisee, which are running successfully and which are giving profit not only to the franchisee बट टू फ्रेंचाइजर ऑल्सो। फ्रेंचाइजर का रिलेशनशिप कैसा होता है? ये 2 बिजनेसमैन का रिलेशनशिप है, दोनों ही अपने अपने बिजनेस में हैं। समबडी हैज़ गॉट द रियल एस्टेट, समबडी हैज़ गॉट द कैपिटल, समबडी हैज़ गॉट द ब्रांड, समबडी हैज़ गॉट द प्रोडक्ट प्रोवेस, एंड नाउ बोथ दीज पीपल दे टाई अप टुगेदर एंड दे स्टार्ट द बिजनेस। सो दिस इज़ अ पार्टनरशिप, दिस इज़ नॉट एन एजेंसी। बहुत सारे लोग एजेंसी और
फ्रेंचाइजी में भेद नहीं करते. दिस इज़ वेरी बैड बिकॉज agency business, C&F business, super stockist, distributor, everything is different. Franchisee is completely different. It is like you are building the brand together, but you need to have very strong processes. The other model is marketplace. मैं अभी quickly model बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा how you can look at your business and see which one is better for you. Either you become marketplace or you go to some marketplace. Either you give franchisee or you take somebody's franchisee. Business is always there, but you have to decide which one is better for you. So marketplace model क्या है? Amazon, Rakuten, eBay, Alibaba, they are all marketplace because they have created a big cart, a kind of a big marketplace with a big assortment. They have connected each and every manufacturers, brand suppliers, as well as entrepreneurs to come on the marketplace, become sellers, become brand store owners, and they are focusing on 2-3 things: logistics, payment gateway, and some quality assurance. Amazon Prime का जब आप एम्बलम देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, देयर माइट बी सम बेसिक क्वालिटी हाइजीन उन्होंने चेक किया रहेगा, या डिलीवर्ड बाय अमेजोन और मे बी अमेजोन पेंट्री वट एवर. सो वो एक ब्रांड इफेक्ट क्रिएट करते हैं, वो एक अपनी प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं. अल्टीमेटली दे टेक lot of money, they take lot of margins. So I'll tell you how you should choose your marketplace. Then aggregator, we all know Oyo, Uber, Ola, Make My Trip. So what they do is they simply aggregate the unorganized market. Uber ने unorganized taxi market को organize किया. They actually train the drivers to run the car safely. They got the cars hygienic, proper billing, transparency. All those things they established, plus the biggest thing is get your car instantly. While you are coming out of the office, you just book the Uber and your car is there. So they actually manage the inventory which was aggregated on the supply side, on the demand side. So they work on the both of the side, and it is like a matchmaking. Aggregator is more like a matchmaking. Now comes the subscription. ये बड़ा यूनिक मॉडल है. एक्चुअल में ये अपने आप में कोई मॉडल ही नहीं है, लेकिन आज यही मॉडल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल समझ में आ रहा है बिकॉज यू आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द कस्टमर एंड यू डोंट अलाउ द कस्टमर टू गो एनीवेयर. आप कस्टमर को इतना बांध लेते हैं अपने सर्विसेज के साथ कि वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाता. द नेटफ्लिक्स इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल. टुडे पीपल आर नॉट वॉचिंग द डायरेक्ट टू होम TV or they are not watching this YouTube also. They are more watching Netflix. And mostly जो सिनेमा प्रोड्यूसर्स जो थे, they are now selling their content to Netflix because it is easy for them to distribute through Netflix. Of course, distribution की पूरी गेम चेंज हो गई है after COVID. Cinema halls are not working, so Netflix is getting content at a dirt cheap price because they have the largest distribution network today, because they are direct to home, they are direct to the customer on their mobile, and their subscription model is such that once you are in, you are in. You don't generally go out, and if you try to go out, they will offer you something that you will remain there. That is called subscription. तो हम time for a quick poll, एक quick poll करते हैं हम लोग सब. देखिए अभी जो हमारा ग्रुप है यहाँ पे जो आप मुझे सुन रहे हो, there are people who are from these professions, accounting, banking, consulting, education. ये आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है. These are the designation on the left hand side. On the right hand side there are designation. तो जो भी डेजिग्नेशन है बिजनेस की या बिजनेस का जो भी नाम है, ये मैटर नहीं करता है. आप मुझे अभी बताएंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर बिजनेस ग्रोथ फॉर यू. तो इसको करने का एक टेक्निकल तरीका भी है, 1 मिनट लगेगा. हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली करते हैं. लेट अस डू लिटिल टेक्निकली. आई विल शेयर दिस लिंक विद यू एंड यू कैन सिंपली क्लिक द लिंक एंड टेल मी विच मॉडल अभी जो मैंने आपको बताया उसमें से कौन सा मॉडल आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आपके लिए बिजनेस की संभावना छुपी है. ये मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाला है. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक और इसमें 4 ऑप्शन आएंगे. 1 मिनट का समय है आपके पास. आप इस लिंक पे क्विकली क्लिक करिए एंड देन हमारा पोल अभी ख़त्म हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी हमें पता लग जाएगा.
सो ये मैंने पोल की साइट देखी है, पोल पे रिजल्ट चलना शुरू हो गया है। जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा है आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस इज़ हाउ द रिजल्ट इज़ गोइंग लाइव नाउ। सो आप ही लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और रिजल्ट आता जा रहा है। गुड। सबसे ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं मार्केट प्लेस मॉडल को, एग्रीगेटर फ्रेंचाइजी बराबर आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल नंबर 2 पे। देखिए अभी टोटल नतीजे आए हैं 18 लोगों के, उसमें मार्केट प्लेस इज ऑन द टॉप, एग्रीगेटर एंड फ्रेंचाइजी ऑन द सेकेंड और सब्सक्रिप्शन ऑन द नंबर 2। देखिए ये दिस इज हाउ आउट ऑफ 26 पीपल व्हेन 18 people believes in this is the live results। और टोटल आप देखिए 11, 6, 17 तो 19 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया एंड दिस इज द रिजल्ट। नाउ आई वांट टू नो एनीवन लाइक हु वुड से कि व्हाई पीपल हैव चोजन मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस को चूज करने का रीज़न क्या है? सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2 लोगों ने चूज किया है, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हम सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं जानेंगे तो शायद हम सब्सक्रिप्शन मॉडल को इग्नोर करेंगे। जाना नहीं तो माना नहीं, और माना नहीं तो उसको किया नहीं। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। सो एनीवे, so now I'll start how we can choose our right model. So many people say marketplace and all, but अब आप अपने बिजनेस के बारे में इमेजिन करिए, छोड़ दीजिए वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेस जो मॉडल फॉलो करते हैं उन्हें करने दीजिए। अब हम अपने बिजनेस की बात करते हैं, अब हम अपने सर्विसेज की बात करते हैं जो हम कर रहे हैं। तो उस सबसे पहले हाउ टू चूज़ द राइट बिजनेस मॉडल, ताकि आप अपने एम्बिशंस को जल्दी अचीव कर सकें, आपके जो भी गोल्स हैं अपने बिजनेस के बारे में वो आप पूरे कर सकें। तो ये यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड द प्लेटफॉर्म एंड द कंट्रोल यू वांट ऑन योर बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, बिजनेस देखिए जब छोटा होता है कंट्रोल करना आसान होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एंटरप्रेन्योर हैं, छोटा बिजनेस हम करते हैं तो उसको कंट्रोल करने में सारे काम आप खुद कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है आपको प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे कि आप कंट्रोल कर सकें। So you have to focus कि what you want to do, which one is more profitable for you. Production is profitable or picking, packing, shipping is profitable, or supporting services, customer support is very important, और या फिर product development, IPR, branding, innovation या processes। तो मोटा मोटा ये 4 अलग अलग पहलू हैं बिजनेस के। जब आपका बिजनेस छोटा होता है तो ये चारों काम आप खुद करते हैं। प्रोडक्ट डेवलप भी आप करते हैं, ब्रांड भी आप बिल्ड करते हैं, उसका प्रोडक्शन भी आप करते हैं, उसकी पिकिंग, पैकिंग, शिपिंग, कस्टमर तक पहुंचाने का काम भी आप करते हैं, और आफ्टर सेल सर्विसेज जो कस्टमर को चाहिए वो सारा काम आप करते हैं, और सपोर्ट सर्विसेज, अकाउंटिंग, HR, लीगल, कंप्लायंस। तो एक एज ए बिजनेस ओनर इन अ स्मॉल बिजनेस यू डोंट हैव अ लग्जरी टू बिल्ड अ बिजनेस मॉडल। लेकिन अगर आप बिजनेस मॉडल को लेके कॉन्शियस हैं तो वो छोटा बिजनेस आपने देखा केस स्टडी में, किसी ने भी बड़ा बिजनेस शुरू नहीं किया था। कोई भी बिजनेस बड़े से शुरू नहीं होता है, पहला बिजनेस छोटे से शुरू होता है। जेफ बेजोस ने भी 20 आइटम की लिस्ट बनाई थी, लेकिन एक ही आइटम पे फोकस किया पहले 2 महीने। क्या था? किताबें, बुक्स, और 45 कंट्रीज में उसने बुक्स बेच डाली, तभी उसका IPO 3 साल में आ गया। तो यू हैव टू फोकस ऑन one important thing which your core is all about, क्योंकि हर किसी का कोर अलग होता है। somebody is very good in logistics, somebody is very good in production, somebody is very good in research, building the brand and building the market, and if you are good in pleasing your customer, if you are good in giving your customer what they want, probably you focus only on that, and rest all you either hire or get from someone else, so that with your limited resources, with your limited bandwidth, you can achieve your success faster. Now how to do that? So there is a process. Here is you, ये आप हैं, आप अपने अभी लैपटॉप पे बैठे हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, और जो बिजनेस करते हैं, सॉरी somebody want, Sorry, yeah,
Please. Yeah, Rishabh, just one small request. There is one more meeting lined up. I need to rush out of it for 15-20 minutes. Is this recording will be shared with us? Yeah, so recording I'll share. I'll share with you. No problem. So will it be sent over the email or how it is like? I will try to download and send it via a link. Yeah. All right. Okay. Okay. Yeah. Thank you. So here is you. So you are business owner, or you are working in a company, or you are partner in your business. Whatever designation you have doesn't matter. You are a business, and you know what business you are going to do. So first you need to know that are you connected with your customer, and is he paying you for your services? Is he paying you well for your services or product? That is the first question you should ask before you get into your business model defining that which business model will help you. Because if you are getting paid well, then the second question is, are you an innovator? Are you innovating product, new product, so that tomorrow you can scale up to the new geographies और न्यू स्टेट्स. अगर आप एक शहर में बेच रहे हैं, अगर आप इंदौर में बेच रहे हैं, तो आपको अपनी सर्विसेज मुंबई में बेचने के लिए आर यू इनोवेटिव इनफ? और यू कैन लॉन्च योर फ्रेंचाइजी बिजनेस. कैन यू लॉन्च योर फ्रेंचाइजी बिजनेस और लाइसेंसिंग बिजनेस फ्रॉम दैट इनोवेशन? Most of the people, they innovate, they are very good innovator, but when it comes to commercialization, they fail. So you need to know where your strength lies, and your strength is not you only. Your strength is your team, your capital resources, and your intellectual resources, and your customer, target customer, because the target is very important. What Amazon did is their resources were limited, but their target was unlimited. So instead of selling 20 products, they sold only one product. Can you imagine? Starbucks, 49 years, only coffee. Why? We have to ask those questions. They could have sold every beverages like Coca-Cola, like Nestle. But why Starbucks is only? Because they want to innovate. They want to do service to the customer, and they want to stick to one, because that only allows them to create a differentiation in the market, create a niche in the market. So the other thing you should ask yourself is production. Are you a creator? आप फैक्ट्री ओनर है, मशीनों से आपको लगाव है, आप मिलिंग करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, किसी ब्रांड के लिए OEM बनना चाहते हैं, बट इन दैट प्रोसेस you can create manufacturing excellence. The branding will not work for you, marketing will not work for you, but if you create a production excellence. Take an example of Foxconn. What Foxconn is doing, they are creating Apple phones, big way, very very big way. अभी चेन्नई में भी उनकी फैक्ट्री चालू हो गई है, तो मेक इन इंडिया फोन भी वो बनाएंगे. Apple, now the new model of Apple will be manufactured completely in India. So if that kind of a ambition you have, then you should focus on production, and your business model will change accordingly. And now the last thing, logistics. If you are connected with demand and supply, if you love connecting, if you are a connector, so one is customer oriented person, second is innovator, third is creator, and the fourth is connector. Matchmaking, marketplace, what is this? All connections. डिमांड और सप्लाई को मिलाना है. अगर आपको ये समझ में आता है गेम, देन यू गो इनटू मार्केट प्लेस, और यू बिकम ए मार्केट प्लेस सर्विस प्रोवाइडर, विच मीन्स अ कंपनी लाइक डिलीवरी, अ कंपनी लाइक ब्लू डार्ट, फेडेक्स, DHL, what they are doing, logistics, or somebody who is into warehousing, somebody who is into last mile shipment, return, refund, delivery, all those things. They are going to succeed in supply chain. We call it supply chain. इसी तरह से procurement supply chain भी होती है. This is very big, because lot of big companies, they are sourcing from India. Walmart is sourcing from India for last decades, couple of decades, and their sourcing power is very very big. So if you have an inclination towards matchmaking, you can be a very good supply chain company, and your business model will be changed accordingly. Now let us go and check
When you meet now with your team, आप कंसल्टेंट हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं, आप जो भी बिजनेस में हैं, आप ये 8 सवाल अपनी टीम के साथ डिस्कस करिए. एंड इफ़ यू वांट, आई कैन हेल्प यू सेट अप दैट डिस्कशन and set the tone right so that you know which model suits you, that we can do one-to-one offline. So firstly you have to decide who is your customer, what is your value proposition. आप कस्टमर को क्या ऑफर कर सकते हैं जिससे कि वो आपके साथ जुड़ा रहेगा. एंड व्हाट इज योर वैल्यूएशन प्रोपोजिशन. वैल्यूएशन प्रोपोजिशन होती है इन्वेस्टर के लिए, बैंकर के लिए. आप ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हैं जिससे कि बैंकर आपको पैसा देने में कभी भी मना नहीं करेगा, जिससे कि इन्वेस्टर आपके पास खींचा चला आएगा. वो आपको, आप उससे 10 मिलियन रेज करने की बात करोगे, वो बोलेगा आप बिजनेस को और बढ़ाओ, आप 20 मिलियन लो. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. द कंपनी इज लाइक ओयो, $1 billion they have got, and tomorrow if they come up with their business model, right business model, they can even get $2 billion also, because people may say they are not making profit. See, if you see the history, the most profitable companies, they never make profit in the first 5 years. Just check the history. Even the most trusted brand also, they first establish the model and then they make money, because by the time they create lot of entry barriers, then it becomes very difficult for a newcomer to just come and take away the market share from them. No, it's not easy. So they invest in building that infrastructure. So today the infrastructure is digital. So digital infrastructure is equally investment heavy. It is not zero investment. So first of all, what is your valuation proposition? Then your survival trap. This is very important, and particularly in COVID-19 time, everybody is thinking about survival, but a businessman should never think about survival. ये काम उनका है जो जॉब करते हैं. Businessman should always think about growth and never lose a crisis. The biggest threat is biggest opportunity. So this is the time to discuss with your team that let us not get into survival trap. Let us not cut ourselves short. Let us not get bogged down by the market dynamics, because market is not going to remain the same. Market will change, and if we survive in that, then we will remain mediocre. But if we thrive in this, then we'll emerge as a leader. So अगर आपको market leader बनना है, today morning I was sitting with somebody. The guy is right now doing a turnover of some 15-20 crore, and he want to take a goal of 200 crore turnover. And it was a very interesting discussion, because I was just challenging his current business model. I told him that current business से आप 20 से 30 पे पहुंच सकते हो, 20 से 200 नहीं जा सकते. तो आपको पहले बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा. Then only you can think of achieving 200 crore. क्योंकि अगर हम जैसे कहते हैं ना, बॉम्बे में लोकल ट्रेन 2 तरह की होती है, धीमी गति वाली और तेज़ गति वाली. अगर आप तेज़ गति वाली में बैठेंगे तब आप टाइम से घर पहुंचेंगे. धीमी वाली में बैठेंगे तो सारा स्टेशन देखना पड़ेगा, टाइम से पहुंचने की गारंटी नहीं है. तो इस तरह के जो है बिजनेस मॉडल में भी सर्वाइवल ट्रैप में अगर आप फंस गए तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं बन सकता. तो यू हैव टू हैव ग्रोथ माइंडसेट. देन कैपिटल प्ले. मोस्टली पीपल आर अफ्रेड टू रेज कैपिटल और इवन रेज डेट. डेट इज चीपर देन इक्विटी. इक्विटी में आप अपनी ओनरशिप देते हैं, आप अपना फ्यूचर प्रॉफिट भी आज अपना सेल कर देते हैं. डेट में यू नो हाउ मच यू हैव टू पे. इफ योर बिजनेस हैज गॉट सफिशिएंट मार्जिन, you can change your business model. Intellectual play. Mostly you will see people who have made money, all these digital billionaires जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, they are all first generation brand builders. उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से पैसा बनाया है, अपने IPR से पैसा बनाया है, अपने ब्रांड से पैसा बनाया है, लाइसेंसिंग करके, फ्रेंचाइजिंग करके, रॉयल्टी कमा के उन्होंने पैसा बनाया है. They have not sold, bought and sold. ट्रेडिंग से वैल्यूएशन नहीं आती है, बिलीव मी. ट्रेडिंग से वैल्यूएशन नहीं आती है. ट्रेडिंग से इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है, लेकिन वैल्यूएशन का गेम हमेशा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ही आता है. देन योर टेक्नोलॉजी प्ले. हाउ टेक्नो सेवी यू आर और योर टीम इज. और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी पे काफ़ी फोकस आने वाला है. तो आई ऑलवेज से दैट ट्राई टू बिल्ड योर डिजिटल एसेट्स एज सून एज पॉसिबल. डोंट डिले द प्रोसेस, बिकॉज यू विल रिग्रेट. पीपल हु विल बिल्ड इट, दे विल go far higher than the others. Now this is the game. Sorry. Yes. So firstly you have to make a process of innovation. If you want to build your business which is higher value,
higher valuation, and short gains, then first set your process to innovate. Develop the culture of innovation in your company, whether you are a small team of 4 people or a large team of 400 or 4,000 people, doesn't matter. If your team loves innovation, they can only love innovation when the team leader or the owner of the business, they promote innovation. And innovation is challenging the status quo. उसको चैलेंज करे बिना इनोवेशन नहीं हो सकता. अगर हम सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम तो ऐसा ही बिजनेस करेंगे, हमारी इंडस्ट्री तो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज ही रहेगी, हमें प्रॉफिट हाई नहीं सकता, हमारा मार्जिन लो मार्जिन बिजनेस है. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लो मार्जिन हाई मार्जिन. स्टारबक्स वही कॉफ़ी 400 रुपये में बेचता है, वही बाहर 40 रुपये में बिकती है. तो हम कौन से मार्जिन की बात कर रहे हैं? वही सेम कस्टमर हैं जो शहर में रहते हैं, तो वो स्टारबक्स जाके पीने वाले भी हैं, और बाहर 40 रुपये की कॉफ़ी और इवन 10 रुपये की कॉफ़ी भी मिलती है. तो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड प्राइसिंग. यू कैन नॉट प्राइस एनीथिंग. प्राइस इज nothing but a discovery. You have to do always, you have to know who is your customer. So set the process, create the franchisee or licensing or model which you can replicate faster. In today's terms, replication is easier, it is faster. Why Oyo succeeded? Why Zoom succeeded? Because they created a model, they created a business wherein onboarding the customer is easy. Onboarding a hotel become easy. आज अमेजोन में सेलर बनना है, 24 आवर्स में आप अमेजोन में सेलर बन सकते हैं. अब आप देखिए, आपके बिजनेस में अगर आपका प्रोडक्ट कोई और बेचना चाहता है तो वो उसको कितने घंटे लगेंगे या कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में. दैट इज़ द पैरामीटर. सो यू हैव टू रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम ऑफ गेटिंग द कस्टमर, गेटिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर और इवन फिक्सिंग अ सप्लायर. उसका समय आपका कितना आप कम कर सकते हैं, देन इट विल बिकम ए रिप्लिकेबल मॉडल. नाउ मार्केट प्लेस आप सभी लोग एकदम पसंद करते हैं, तो मैं मार्केट प्लेस के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ. मार्केट प्लेस इज मैच मेकिंग यूजिंग द टेक्नोलॉजी. चाहे जीवनसाथी.com हो, शादी.com हो, या आपका नौकरी.com हो, लिंक्डइन हो, एवरीबडी इज जस्ट डूइंग मैच मेकिंग. एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बिल्डिंग कम्युनिटीज़ और कम्युनिटीज़ को आपस में मिलाते हैं. तो ये काम सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन इसको मार्केट प्लेस नहीं कहते थे. पहले ये काम पंडित जी कराते थे, अब वो काम ऑनलाइन होने लग गया. पहले उस काम के लिए बिजनेस ब्रोकर्स होते थे, अभी वो ब्रोकर की जगह मार्केट प्लेस ने ले ली. तो क्या हुआ, डिसइंटरमीडिएशन एट द मास लेवल पे कस्टमर एंड सप्लायर आर गेटिंग क्लोजर. इन बिटवीन जो लेयर्स हैं दे आर गेटिंग रिमूव्ड, एंड दैट इज वेयर द ह्यू एंड क्राई हैपन्स. बिकॉज इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट लेयर विच इज बीइंग रिमूव्ड बाय द टेक्नोलॉजी, देन यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ मार्केट प्लेस. तो मार्केट प्लेस आपको डिस्टर्ब कर देगा. बट अगर आप यही मार्केट प्लेस के गेम को समझ जाते हैं एंड यू आर यूजिंग द मार्केट प्लेस फॉर योर पावर, देन यू आर एट द राइट साइड एंड यू कैन क्रिएट योर ओन मार्केट प्लेस. आई टेल यू, इन द पर्सन विद whom I was talking in the morning, he is into steel business, and I was talking to him that why there is no marketplace only for steel. He said कि ऐसा तो कुछ है नहीं, और मे बी है तो I don't know. Then I said कि why let us research it out. Everybody buys steel, every manufacturer buys steel in some or other form, whether it's a SS or MS. So why not we have a marketplace only and only for steel? People will love it because they will get advantage of aggregation. They will get matchmaking faster and it can become successful. For example, Shop Kirana, आपके इंदौर based company है. Today, as per their website, they have got more than 1 lakh retailers in 8 states or probably 8 cities. Whatever, I don't remember exactly, but 1 लाख रिटेलर उनके पास हैं. तो उनकी ताकत क्या है? दे हैव बिकम ए मार्केट प्लेस फॉर किराना स्टोर्स. किराना स्टोर को खरीदना होता है, कोई 2 लाख का माल खरीदता है, कोई 5 लाख का माल खरीदता है, तो हर महीने उनकी खरीद है. लेकिन अगर इस खरीद को मिला दिया जाए, 1 लाख लोगों की खरीद 2 लाख की एवरेज से 2 लाख करोड़ की खरीद बन जाती है. एंड हाउ मेनी ब्रांड्स आर सेलिंग टू देम? वही 40, 50, 60 ब्रांड. तो 60 ब्रांड अगर आप उनके पास जाते हैं, आप कहते हैं जी हमारी 1 लाख करोड़ की परचेज है, दे विल डेफिनेटली गिव यू अ प्राइस विच दे कैन गिव टू नो वन एल्स. तो आपने क्या किया? यू हैव एम्पावर्ड दी योर मार्केट प्लेस स्टेक होल्डर्स. हर मार्केट प्लेस में स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो स्टेक होल्डर्स को एम्पावर करे बिना आपका मार्केट प्लेस नहीं चल सकता. अगर आप स्टेक होल्डर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपका मार्केट प्लेस एक बार तो चल जाएगा, लेकिन आफ्टर 6 months, 1 year down the line, when people will realize that they are being exploited, they will leave the marketplace and marketplace की वैल्यू 0. तो build the marketplace which is on a win-win.
I'll tell you the example. PayPal, WhatsApp, Uber, Airbnb, they are all marketplace. WhatsApp is a marketplace. Yes, WhatsApp came long ago. They are still free. अब उन्होंने कॉमर्स शुरू किया है, चैट बेस्ड कॉमर्स. दे हैव गॉट द लाइसेंस इन इंडिया. दे हैव स्टार्टेड नाउ एंड नाउ दे हैव टाइड अप विद रिलायंस. तो जियो के साथ में व्हाट्सएप का जो टाई अप हुआ है, नाउ यू विल सी द एंटायर रिटेल स्टोर. आपके नज़दीक की किराना दुकान अभी व्हाट्सएप पे खुलने वाली है, तो यू कैन ऑर्डर. तो विदाउट एनी मोबाइल एप्लीकेशन, विदाउट एनी वेबसाइट, द किराना शॉप विल बी एम्पावर्ड टू सेल फार्मेसी, एम्पावर्ड टू सेल वाइट गुड्स, एम्पावर्ड टू सेल किराना. एक छोटी सी दुकान 200 स्क्वायर फीट की, वो अगर 20,000 स्क्वायर फीट वाले शोरूम का मुकाबला कर लेगी, क्योंकि दे आर बीइंग पावर्ड बाय द मार्केट प्लेस. सो दैट एम्पावरमेंट इज लाइक मार्केट प्लेस. दैट इज द रियल इवोल्यूशन ऑफ मार्केट प्लेस, नॉट लाइक एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन करने वाले जितने मार्केट प्लेस हैं वो सारे बंद या तो हो चुके हैं या हो जाएंगे. इंडिया में 1500-1600 मार्केट प्लेस रजिस्टर्ड हैं. एंड नाउ द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी अभी पिछले हफ्ते पास हुआ है, they have hold the marketplace also responsible for all the advertisement, product guarantee, warranty, सर्विस क्वालिटी, सभी उनको इंश्योर करनी पड़ेगी. तो ऐसे में वही मार्केट प्लेस चलेंगे जो कि अपने स्टेक होल्डर के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं. अदरवाइज एवरी अदर पर्सन विल बी आउट ऑफ द पिक्चर, आउट ऑफ द गेम. देन कम द वैल्यू. इमीडिएट गेन्स आपको चाहिए, देन यू हैव टू डू अ लो टच बिजनेस, सॉरी हाई टच बिजनेस, wherein every day you are making some money, but you may not make super profit. If you want super profit, then you have to become more of an aggregator, like McKinsey, Accenture. Accenture क्या है? They are an accounting firm. वो थर्ड पार्टी अकाउंटिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, KPO BPO का काम करते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे उन्होंने उस काम को लेके गए कि नाउ दे आर अनबीटेबल. रिलायंस इंडस्ट्री, टेलीकॉम कंपनी, बट दे हैव बैकवर्ड इंटीग्रेटेड विद बैंकिंग. They are backward integrated with e-commerce, retail, farmer, kitchen. फार्म से होम तक की जर्नी उन्होंने पूरी कर ली है. And now they are relying on the marketplaces. They are tying up with the largest technology company. They have got investors in the form of the biggest technology company. So their game is completely set. They want to enable 60 million retailers with this value proposition. So this is what the magic and the beauty of business model. तो आप किसी भी बिजनेस में हैं, आपको कॉन्सेप्ट पे सोचना है. देन यू हैव टू डू सम प्रोटोटाइपिंग ऑफ योर बिजनेस मॉडल, बिकॉज प्रोटोटाइपिंग हमेशा आपकी खर्चे को बचा लेती है. अगर आप पहले से ही लॉन्च कर दोगे बिना कस्टमर टेस्ट किए, बिना वाटर टेस्ट किए, देन यू विल लूज. देन डेवलप द बिजनेस मॉडल एंड देन टेस्ट इट, एंड फाइनली एंड प्रोडक्ट आपका मार्केट में आ जाएगा. दिस इज हाउ द सब्सक्रिप्शन मॉडल्स आर डिजाइंड. वो क्या कहते हैं, जैसे अमेजोन ने 1994 में सब्सक्रिप्शन शुरू नहीं किया था. अमेजोन प्राइम मेरे ख्याल से आया था 2015 में आसपास. तो प्राइम क्या है? प्राइम एक सब्सक्रिप्शन है. 999 रुपये दे के आप सब्सक्राइब कर लीजिए उनकी सारी सर्विसेज, ऑडियो, ऑडिबल, ऑडियो बुक्स, देन योर मार्केट प्लेस, फ्री डिलीवरी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उसके अलावा आपको मूवीज़ मिल जाती हैं, गाने सुनने को मिल जाते हैं. तो आप अपना मैक्सिमम स्क्रीन टाइम सब्सक्रिप्शन को दे देते हैं. सब्सक्रिप्शन का पुराना मॉडल अगर आपको बताऊं, रीडर डाइजेस्ट मैगजीन आती थी. आप में से बहुत लोगों ने रीडर डाइजेस्ट पढ़ा होगा, आज भी आती है. उनका डाक से सब्सक्रिप्शन मॉडल के बारे में आता था कि 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन 3,000 में ले लीजिए, साथ में एक न्यू ईयर की डायरी फ्री है, ये है वो है. तो देर आर लॉट ऑफ गिव अवेज एंड गिफ्ट्स दे यूज टू गिव बिकॉज दे वांटेड टू सब्सक्राइब, ताकि आप एक बार ही सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप उसी को पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद अगर टाइम बचा तो किसी और को पढ़ेंगे. तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सब्सक्रिप्शन मॉडल कि वो कस्टमर को बांध लेता है. यदि आप कस्टमर को हर महीने उससे पैसा लेंगे तो किसी महीने अगर आपकी सर्विस उनको समझ नहीं आई तो वो आपको छोड़ के भी जा सकता है. लेकिन आप उसको सब्सक्रिप्शन में डाल देंगे तो इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट इट विल लीव यू अनलेस अनटिल सर्विस इज़ कम्प्लीटली बैड. और आपकी इवन सेल्स, टुडे द ग्रॉसरी सेलिंग इज़ हैपनिंग इन सब्सक्रिप्शन मोड. एवरीबडी नोज कि आप महीने में 5,000 से 7,000 रुपये का सामान लेते हैं, तो वो कहते हैं कि आप अपने आप को सब्सक्राइब कर लीजिए. इफ़ यू आर यूजिंग सर्फ ब्रांड और यू आर यूजिंग सम पर्टिकुलर सोप ब्रांड और पर्टिकुलर ग्रोसरी ब्रांड, स्टेपल ब्रांड, देन वाई डोंट यू सब्सक्राइब, विल चार्ज यू लेस, 5% लेस, एंड पीपल सब्सक्राइब टू इट कि ये तो हर महीने लेना ही है, लेट अस डू इट. सो कस्टमर इज माइंड, डेटा इज माइंड, एंड एनालिसिस इज मिंटिंग द मनी. सो what subscriber model says that I am the symphony creator, I create the entry barriers for others.
Once you are subscribed, you are definitely going to buy from that portal because you have paid the subscription. So that's the beauty of, अगर मैंने अभी Zoom का सब्सक्रिप्शन कर दिया है, 1 साल का मैंने ले लिया क्योंकि वो 1 साल में 30% डिस्काउंट दे रहे थे. आई थॉट कि ठीक है, अब जो समय चल रहा है डिजिटल है तो ये तो काम आना ही है, हर महीने पे करो, रिमाइंडर आएगा, इनवॉइस आएगा, 1 साल का एक साथ इनवॉइस ले लेते हैं एंड लेट अस पे फॉर 1 ईयर. नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो फॉर अनदर सब्सक्रिप्शन. Maybe another free application I can use, but another subscription why should I buy? That is the psyche of the customer, and subscription model इसीलिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है आज की तारीख में, because everybody wants certainty of revenue, कि हमें हर महीने एक certain revenue आए. रेवेन्यू फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट फ्लक्चुएट नहीं होती हैं बिजनेस की. तो अगर आपका बिजनेस सब्सक्रिप्शन मोड में आ जाता है तो आप समझ लीजिए आपका प्रॉफिट इंश्योर है. और अल्टीमेटली हम बिजनेस करते किसके लिए? प्रॉफिट के लिए. So this is how you should ask along with your team. You should identify the opportunity, build your community, कौन आपके कस्टमर होंगे, then collaborate with the delivery partners कि आपकी goods और services को पहुंचाने के लिए, कस्टमर को सर्विस करने के लिए who will be your partner, control your customer touch point, and then ultimately generate the investor wealth. अगर आप खुद सेल्फ इन्वेस्टेड हैं अपने बिजनेस में तो वेल्थ आप एंजॉय करेंगे. अगर आपने IPO लेके पब्लिक से मनी रेज किया है या बैंक से मनी रेज किया है या अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ मनी रेज किया है, यू विल डेफिनेटली जनरेट इन्वेस्टर फॉर वेल्थ इफ़ योर मॉडल इज राइट. अब मॉडल के कुछ फ्लॉज भी हैं, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता है. हर मॉडल के कुछ पेरेनियल फ्लॉ होते हैं, पेरेनियल गैप होते हैं, उन गैप को जानना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्लेस लॉयल्टी मिसिंग होती है. मार्केट प्लेस में कोई या प्लीज. Can you please explain the difference of marketplace and aggregator? Yeah, so marketplace is a platform which connects the dot for a fee. Aggregator is somebody who hold the inventory and then sell it. For example, aggregator is like Amazon is aggregator. Amazon is a marketplace come aggregator because Amazon sell their own brand, and Amazon, that is what the question today is being asked in the court in Washington. What Amazon is actually doing, because they have the marketplace model and they are also selling the product in many countries wherever they are allowed to in their own brand. So they are playing a dual head. Okay. Amazon is branding your own product. Yeah, Amazon Basics है, Amazon के अपने brands भी हैं जहाँ पे वो aggregate करते हैं. They are aggregating the certain product, certain variety of products. मार्केट प्लेस कभी भी एग्रीगेट नहीं करता. वो अलीबाबा का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ईबे का कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है. उनकी अपनी सर्विस ब्रांडिंग है कि दिस इज सर्विस्ड बाय ईबे, दिस इज सर्विस्ड बाय अमेजॉन, सर्विस्ड बाय अलीबाबा. बट द मोमेंट यू स्टार्ट योर ओन प्रोडक्ट, देन यू बिकम मोर लाइक एन एग्रीगेटर. एंड दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग देमसेल्फ, दे आर गेटिंग इट मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर एंड देन दे आर सेलिंग इट ऑन देयर प्लेटफॉर्म. तो जब आपके पास प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, तो उस मार्केट प्लेस में आप एक अपनी दुकान भी खोल लेते हैं. आप अज्यूम करिए, इसको मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ. Amazon is not doing his product. They are having a Cloudtail company called. Yeah, so that is all. Amazon may not be doing legally. The entity will be different, but at the end of the day, when their entity where they have direct or indirect investment, so they are into sales of products. So in many countries they are doing their own product. So like in India, it is not allowed. The retailing is not allowed, but in many countries in America they are doing their own product. So with Amazon brand, there are a lot of brand of Amazon which are being sold in the marketplace. So that is a difference. So marketplace में loyalty is missing क्योंकि marketplace में आप match making करते हैं. Once you have made the match, then customer will find another marketplace which is more lucrative. They will do the comparison, then they will buy. So marketplace में loyalty create करना बहुत मुश्किल है. That is why everybody is now talking about different things. Like वो गुड्स के साथ साथ म्यूजिक भी बेच रहे हैं, म्यूजिक के साथ गेम्स भी बेच रहे हैं, सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, ताकि कस्टमर वहाँ मार्केट प्लेस में आता रहे. इवन उबर ओला जो है वो एग्रीगेटर हैं, बट साथ में उन्होंने फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दिया. साथ में उन्होंने कुछ और ट्रांसपोर्टेशन का काम या एंटरप्राइज के साथ टाइप करके उनके लिए फिक्स कार, जैसे कार रेंटल का बिजनेस है, दे हैव स्टार्टेड दैट ऑल्सो ऑफ लेटली. सो बिजनेस मॉडल गेट इवॉल्व बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू मेक मार्जिन. मार्केट प्लेस में मार्जिन बड़े थिन होते हैं. अगर आप मार्केट प्लेस बनाने का ड्रीम रखते हैं
तो यू शुड नो कि इट्स अ ह्यूज बर्निंग ऑफ कैपिटल टू एस्टेब्लिश द मार्केट प्लेस. आपको सप्लाई और डिमांड को लाने के लिए यू हैव टू वर्क अ लॉट एंड इट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. एग्रीगेटर में इट्स अ कैपिटल प्ले. अगर आपके पास पैसा है, आप माल खरीदिए और माल बेचिए. दैट इज द वर्क विच एवरी सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर दे नो हाउ टू मेक मनी. अपॉर्चुनिटी बाइंग करना है. इफ़ यू आर इन एग्रीकल्चर बिजनेस, मार्केट में जब फसल आती है उस समय आप फसल लीजिए, मिलिंग करवाइए, अपना स्टॉक कर दीजिए. जब भाव बढ़ेंगे उस समय आप बेच दीजिए. दैट इज अ प्योर प्ले, कैपिटल प्ले. इट्स अ एग्रीगेशन ऑफ रिसोर्सेज, एग्रीगेशन ऑफ कैपिटल. उबर ने ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर बना क्योंकि उन्होंने गाड़ियों को एग्रीगेट कर दिया. 5 लाख कार्स अंडर देयर सिस्टम मीन्स दे आर एग्रीगेटिंग 5 लाख कार्स. वाई मेगा कुड नॉट डू इट, वाई मेरू कुड नॉट डू इट? बिकॉज दे कुड नॉट रीच टू दैट साइज, बिकॉज they were investing money. They were investing money in cars. They were buying cars or taking cars on loan or taking. But here in Uber model, it was the investment was in processes. Investment was in booking the order. Investment was in collecting the payment, distributing the payment to the drivers. The investment was in training the drivers, making the system transparent. All those customer experience. So that was the experience. अगर आपको Uber में एक छोटा सा भी आप कंप्लेंट करो कि कार टाइम पे नहीं आई, आपने बुकिंग कैंसिल करी, कैंसिलेशन फीस वो इमीडिएटली रिवर्स कर देते हैं, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट बेटर एक्सपीरियंस. यही अगर आपको रिफंड लेना हो किसी टिपिकल कार कंपनी से, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज दे विल सेट अप एन इंक्वायरी सॉर्ट ऑफ थिंग एंड दे विल टेक 7 days टू डिसाइड वेदर दे शुड गिव यू रिफंड और नॉट. So that's aggregator is a capital play. You should have an intellectual or real capital to invest so that you become a good aggregator. Franchisee is all about delivery, because franchisee में क्या है कि you have appointed somebody to do your work and take some fair share from the profit. Now that person should be able to do Kidsy School. अब Kidsy School की franchisee है, somebody is running good, some franchisee running bad, some DPS franchisees are running very good, some DPS franchisees are not able to even recover the fixed cost because the delivery is important. So that is a big flaw. अगर आपका franchisee program सारे सवालों के जवाब नहीं कर पा रहा है तो आपका ब्रांड लॉस्ट हो जाएगा. And a bad franchisee can completely tarnish your business, your entire plan. अगर आपने बैड फ्रेंचाइजी चूज़ कर लिया, हो सकता है वो आपको फ्रेंचाइजी पैसे दे के आ जाए कि भाई आपने जितने मांगे 2 करोड़ मांगे, उसने 2 करोड़ दे दिए, लेकिन अगर वो बिज़नेस को चला नहीं पाया, डिलीवरी नहीं कर पाया, तो वो ब्रांड आपका नहीं ख़राब होगा, वो मतलब उसका ख़राब नहीं होगा क्योंकि उसका तो कोई ब्रांड है ही नहीं, ब्रांड तो आप बना रहे हो, तो आपका ब्रांड, फ्रेंचाइजर का ब्रांड पिट जाएगा. दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन मैनी केस व्हेन द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ वीक. इसी तरह से सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है, सब्सक्रिप्शन मॉडल में रिपीट सब्सक्रिप्शन लेना बड़ा मुश्किल है. दैट इज़ अ बिग फ्लॉ. आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जब साल के अंत में रिन्यूअल आता है या क्वार्टर के अंत में रिन्यूअल आता है, उस समय उस कस्टमर को सारी बातें याद आ जाती हैं कि 1 साल में आपने ये प्रॉमिस किया था, ये नहीं हुआ, आपने ये सर्विस क्वालिटी प्रॉमिस करी थी, ये नहीं हुई. तो दैट देयर यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट इन योर अप्रोच टुवर्ड्स द एंगेजमेंट. कस्टमर के साथ एंगेजमेंट कैसे किया जाता है, C7 एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा. दैट इज द कस्टमर एंगेजमेंट फॉर्मूला. वो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे. लेट मी. कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट, आपकी स्ट्रेंथ और आपका टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट. देन कम्युनिटी, हाउ यू कम्युनिकेट टू योर कस्टमर, व्हाट आर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्क एंड हाउ कस्टमर पे यू, बिकॉज ये अपनी कम्युनिटी के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है. देन कोलैबोरेशन, वैल्यू चेन क्या है आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसेज की, आपके बिजनेस की. आपने कभी इसके बारे में, ये सब थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच है. मैं आपको बता सकता हूँ. सपोज करिए आप एक रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं इंदौर में. अब इंदौर में कौन से मार्केट में खोलेंगे, क्या माल रखेंगे, क्या बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, उस एरिया में कितने लोग आपके दुकान पे आएंगे, कितने लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे. देयर आर मल्टीपल एरियाज यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड बिफोर यू जंप एंड स्टार्ट योर स्टोर. कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन बड़ा सिंपल होता है. आपकी टोटल ग्रॉस रेवेन्यू माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन. उसमें से आपके फिक्स खर्चे हमेशा माइनस होते हैं. अगर वो बराबर भी होता है तो आप बिजनेस कर लो, धीरे धीरे प्रॉफिट आ जाएगा. लेकिन अगर नेगेटिव है, डोंट स्टार्ट द बिजनेस. और अगर आपके करंट बिजनेस मॉडल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेगेटिव हो रहा है, तो थिंक अबाउट योर फिक्स कॉस्ट और थिंक अबाउट डूइंग अवे सम रिड्यूसिंग सम ऑफ द टॉप लाइन. टॉप लाइन कम होने से भी आप फेल नहीं होगे.
क्योंकि आपने टॉप लाइन कम की है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो गई, आपकी कुछ फिक्स कॉस्ट भी कम हो गई, आपका बिजनेस छोटा हो गया लेकिन सर्वाइव कर जाएगा। और उसको बड़ा बनाने के लिए यू हैव टू कोलैबोरेट टू क्रिएट द विन विन स्ट्रैटेजी। इसी तरह से कम्युनिकेट करना है, प्रोसेस ऑटोमेशन। बहुत बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय आर नॉट अवेयर कि उनको क्या करना है। अब वो उनको अगर सुबह आके यही पता नहीं है कि उसको करना क्या है, विच मीन्स योर प्रोसेसेस आर मैनुअल, people don't know what to do, and even sometimes owner also don't know what to do, so they always do firefighting, they are always in a firefighting mode कि हमें कल जाएंगे, कल हमारे को 10 नई प्रॉब्लम मिलेंगी, परसों हमें 5 नई और प्रॉब्लम आ जाएंगी, 5 को सॉल्व कर लिया, 5 को आगे सॉल्व करेंगे। दिस इज़ नॉट द वे टू डू बिजनेस। इफ़ योर बिजनेस इज एंगेजिंग यू, इट इज़ नॉट अ गुड बिजनेस। योर बिजनेस शुड फ्री यू, दैट इज़ दी ओनली बिजनेस। सो प्रोसेस ऑटोमेशन, सेल्स फनल, many times people make their website, they make their good SEO, SMO, Google ad, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, उसके बाद भी उनको सेल नहीं आती है, तो कहते हैं भी ये क्या हो गया, हमने तो इतना पैसा खर्च किया, हमने तो सारा कुछ डिजिटल कर दिया। ऋषभ जी आपने कहा था डिजिटल करो, हमने तो डिजिटल पे पूरा जोर लगा दिया लेकिन सेल फिर भी नहीं हो रही है, कस्टमर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, कस्टमर आ ही नहीं रहा है, नया कस्टमर भी नहीं आ रहा, जो पुराना है वो भी रिपीट ऑर्डर नहीं दे रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं फ्लॉ है, कहीं ना कहीं आपकी सेल्स फनल जो है ब्रोकन है। तो उसको पहले रिपेयर करना है, तो अपने आप जो कहते हैं ना कि कृपा आने लगेगी। तो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज। कॉमर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कैश फ्लो, फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड मार्केट कैप्चरिंग। दीज आर द 3 फंडामेंटल। आप जान लीजिए, कैश फ्लो अगर आपका बिजनेस जनरेट कर रहा है, आप बड़े से बड़ा झटका भी सहन कर जाओगे, लेकिन अगर कैश फ्लो नहीं जनरेट कर रहा है, it will be very difficult. I was talking to somebody in Bikaner. The guy is into business of sweets, snacks. ये सब बीकानेर तो भुजिया पापड़ और रसगुल्ले की इंडस्ट्री है, तो उनका भी वही काम है। तो कह रहे थे कि यार 30% सेल रिड्यूस हो गई है। तो मैंने कहा फिर तो स्टाफ फायर कर दिए होंगे। बोला नहीं, स्टाफ किसी को फायर नहीं किया क्योंकि हमारा कैश का बिजनेस है, हाई मार्जिन बिजनेस है। मैंने कहा दैट्स गुड, यू आर एबल टू सस्टेन बिकॉज यू हैव कैश फ्लो। देर आर मैनी बिजनेसेस हु डोंट हैव कैश फ्लो, they are going to die because they have to change the business model or they have to face the problem. Future profits, this is very important. Mostly people say कि ऋषभ जी ये जो नए बिजनेस मॉडल है हमें समझ नहीं आते क्योंकि इसमें प्रॉफिट ही नहीं है, ये तो लॉस की बैलेंस शीट है, लॉस है इसमें, लॉस में कैसे इन्वेस्टर आ जाता है, हाउ इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज। सो इन्वेस्टर इज नॉट बेवकूफ़, ये काम करने वाले लोग भी बेवकूफ़ नहीं हैं। This model always give profit in future and they give super profits. And why super profit? जब आपने मार्केट कैप्चर कर लिया उसके बाद तो आप ही प्राइस चार्ज करोगे, उसके बाद तो कोई कंपटीशन बचेगा ही नहीं। तो दे ऑलवेज गो इन द डायरेक्शन दैट कैप्चर द मार्केट, क्रिएट द मार्केट और कैप्चर द मार्केट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी लाइक Zoom, they have created the market for their subscription. They have created the market for their subscription because ultimately the market was ready and they were ready with the product, so they created it, they captured it. Now the future profit, today they may face a competition but if they survive they will make super profits. अब यहाँ पे जब हम ऑर्डर लेने जाते हैं तो ये बड़े सिंपल हैं। whenever in every business, whether you are a consulting or you are a trading or you are manufacturing, आपको ऑर्डर लेना पड़ता है या ऑर्डर आपके पास चल के आता है। either way, what is the cost of collecting an order, what is the cost of generating 1 unit of sales, that you should know very very clearly. And what is the cost of fulfillment, cost of delivery of that order. आप चाहे कंसल्टिंग कर रहे हैं या प्रोडक्ट सर्विस कर रहे हैं या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग दैट टू द कस्टमर. सो इफ दैट इज देयर इन योर हैंड, in your business model, you can bifurcate and analyze. So I am telling you how to analyze so that your support cost is reduced and you are billing to the customer. आप समझ लीजिए कि अगर मैं 1000 रुपये का एक पैकेज बेचता हूँ, अगर मैं ड्राई फ्रूट के बिजनेस में हूँ और 1000 रुपये किलो ड्राई फ्रूट मेरा बिकता है, तो उसके अंदर मैं ऑर्डर लेने का खर्चा, इसको फुलफिल करने का खर्चा, डिलीवर करने का खर्चा और अल्टीमेटली माई फिक्स कॉस्ट, ऑल माई सपोर्ट कॉस्ट, रिड्यूसिंग दैट, उसके बाद मुझे जो पैसा बचता है दैट इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन. वो मेरा प्रॉफिट नहीं है. मेरा प्रॉफिट तो अभी और फिक्स खर्चे बात करने हैं, प्रमोटर को अपना भी घर ले जाना है, उसके बाद जो बचेगा वो एक्चुअल में प्रॉफिट है. कैश फ्लो इज़ नॉट अ प्रॉफिट. तो इसको बहुत सावधानी से कैलकुलेट करना है. बिजनेस मॉडल बनाते समय ये बहुत लोग गलती करते हैं कि वो हायर वैल्यू पे बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं मॉडल.
कि भी मेरा माल तो जो है 1500 रुपये किलो बिकेगा, लेकिन मार्केट हो जाती है क्रैश, माल बिकता है 900 रुपये किलो, तो उस समय फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन नज़र ही नहीं आता और सब कुछ रेड लाल लाल नज़र आता है। तो नेवर मेक अ बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन दी टाइड। वॉरेन बफेट ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि टाइड के बाद जो लोग जो समुद्र में नहा रहे होते हैं, कौन बिना टॉवेल के होता है वो बाद में पता लगता है। तो टाइड के अंदर आप बिजनेस मॉडल बनाएंगे तो हायर पे रेवेन्यू ऑलवेज टेक ऑन ए लोअर साइड, कॉस्ट ऑलवेज टेक ऑन ए लिटिल बिट अपर साइड, so that you know conservatively what is your business model is going to generate for you and whether it is justified for you to adopt that model or not. Marketplace कहने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट अगर आप बना रहे हैं तो यू आर एट दी गिविंग एंड, बट आप अगर आप मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी वैल्यू चेन देखनी है कि आप 30% मार्केट को अगर पे कर रहे हैं ऑर्डर लाने के लिए, पैकिंग के लिए और डिलीवरी के लिए, तो आपको क्या बचने वाला है। एंड आई नो वन एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो कोइंसिडेंटली ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, 6 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे भाई साहब, 2 करोड़ रुपये मार्केट प्लेस को दे रहे थे और उनको मुश्किल से 30 लाख रुपए बच रहे थे। तो मैंने कहा भाई आप 5% कमाई के लिए 33% आप मार्केट प्लेस को दे रहे हो, आप अपना ही क्यों नहीं बना लेते, अपना ई कॉमर्स पोर्टल क्यों नहीं बना लेते। तो उससे कस्टमर अगर आपको पता है, तो आपको अपना टारगेट कस्टमर पता है, कम्युनिटी यू नो, वाई डोंट यू सेल टू देम डायरेक्टली। तो दे ही स्टार्टेड दिस एंड नाउ ही इज मेकिंग प्रॉफिट, बिकॉज अल्टीमेटली वो प्रॉफिट वहीं जा रहा था जहाँ नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि अगर ऑर्डर, पैकिंग और डिलीवरी की अगर आपको कॉस्ट पता है कि ये मैं इतने में खुद भी कर सकता हूँ, और अगर आपको अपनी कम्युनिटी पता है, तो देन यू कैन बिल्ड ए कम्युनिटी कॉमर्स मॉडल एंड यू कैन डायरेक्टली बिल्ड टू कस्टमर एंड मेक गुड मनी। सो नॉट ऑलवेज नेसेसरी या आपको मार्केट प्लेस या किसी एक पर्टिकुलर मॉडल में जाना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी प्लानिंग और अपनी इम्प्लीमेंटेशन की सामर्थ्य को देखते हुए इसको रिव्यू करके देन यू स्टार्ट। एंड दिस एक्टिविटी डजंट टेक मच टाइम, इट डजंट कॉस्ट ऑल्सो मच। ये सिर्फ आपको पेशेंटली ये काम करना है, अपनी टीम के साथ करना है और इसको डॉक्यूमेंट करना है पेंसिल और पेपर पे, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर। एंड दिस डजंट रिक्वायर एनी हार्वर्ड डिग्री और IIM डिग्री टू डू दैट। ये आपका बिजनेस है, ये आपकी गणित है, ये जो बिजनेसमैन है वो गणित अच्छे से गिन लेता है, उसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। But you should know how to do it, that is very important. And I am going to tell you, if you have a requirement, then first your business versus business done by your competition versus the business done elsewhere. तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए आप अपना बिजनेस इवेल्यूएट करिए, आप अभी कैसे कर रहे हो, आपके कंपटीशन कैसे कर रहा है और ये दुनिया में कैसे हो रहा है। ये 3 चीज़ें आप लिख लो। इसी तरह से प्लानिंग के टाइम पे स्पेंड मोर टाइम ऑन प्लानिंग, मोर डिबेट एंड मोर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। ये एक फार्मूला है, जितना समय आप प्लानिंग में लगाएंगे सक्सेस उतनी ही ज़्यादा आएगी। क्योंकि प्लानिंग में आप समय ही नहीं लगाएंगे तो सक्सेस की गारंटी नहीं है, वो फिर जुआ है। देन इट्स लाइक ए स्पेकुलेशन। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में नो आइडिएशन, ओनली इम्प्लीमेंटेशन। वंस यू हैव प्लान प्रॉपरली, उसके बाद आपको पेडल पे पाँव रखना है, फिर ये नहीं देखना कि भी अब मैं रेस बढ़ाऊँ या घटाऊँ। रिव्यू, ऑलवेज रिव्यू और कैश फ्लो, प्रॉफिट्स, ब्रांडिंग एंड प्रॉस्पेक्ट फॉर फ्यूचर वैल्यूएशन। क्योंकि आपको हो सकता है इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैं शॉप किराना ने 8 शहरों में अभी गए, तो स्टार्ट तो एक ही शहर से किया था, आज वो 8 शहरों में या 8 स्टेट में चले गए। अब आगे उनका रोड मैप पूरा क्लियर है, 30 स्टेट इंडिया में, 35 UT को मिला के दे विल गो देयर, देन दे कैन गो अब्रॉड ऑल्सो। रिटेल तो बहुत कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में चलता है। सिमिलरली यू स्टार्ट विद स्मॉल बट यू शुड नो योर फ्यूचर वैल्यूएशन प्रॉस्पेक्ट्स। एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन टाइम। मेरा ये यहाँ से भी ख़त्म होता है, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं, उनको मैं लूँगा। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एंड देन आई कैन स्टार्ट टेकिंग दिस क्वेश्चन। ये भी हमारे पार्टिसिपेंट से ही आए हैं, तो व्हाट यू वांट टू फ्रॉम मी। पहले हम एक्सटेम्पर क्वेश्चन लें या पहले ये जो क्वेश्चन आए हैं इनको लें? I think anybody has got the question, please feel free to ask. I will try to answer that. Yeah. प्रकाश है। या प्रकाश जी। जैसे हम लोग बेबी गारमेंट्स के मैन्युफैक्चरर हैं। हाँ जी। तो मैंने 2-3 साल पहले अमेजन में सेलिंग 1 साल किया था, लेकिन कुछ बचता नहीं था। यस। मैंने उसको बंद कर दिया। यस।
कमीशन बहुत हाई है, कोरियर चार्जेस है करके कुछ बचता नहीं था, तो मैंने उसको बंद कर 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। राइट राइट। अब कैसे करना चाहिए भैया मैन्युफैक्चरर्स और बेबी गारमेंट्स? देखिए, दो तरीके हैं। मैन्युफैक्चरर कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन में इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को बल्क में बनाना और बल्क में बेचना तो आता है, लेकिन उसको खुदरा में बेचना, कस्टमर के साथ वो करना, वो उसमें चैलेंज होता है। दैट इज़ वाई अमेजॉन चार्जेज ए हैवी प्राइस फॉर पिक पैक शिप डिलीवरी रिटर्न, क्योंकि गारमेंट में रिटर्न भी बहुत होता है। तो अल्टीमेटली उसको मैनेज करने के दो तरीके हैं। यू कैन अपॉइंट एन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर। आप अपना एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर अलग से बनाइए जो ऑल इंडिया में ऑलरेडी गारमेंट का अच्छा काम कर रहा हो। अगर आप अमेजोन पे देखेंगे, यू विल गेट टू नो हु आर दी पीपल, और हम अपनी कम्युनिटी में भी आप देख सकते हैं कौन बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन बेचने के अपने तरीके होते हैं। तो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर को वो तरीके आते हैं। सेकेंड ऑप्शन कि आप खुद अपने रजिस्ट्रेशन में ही काम करिए, बट यू अपॉइंट ए एक्सपर्ट टीम, मे बी इन हाउस और मे बी यू कैन आउटसोर्स। I can help you with some companies who are doing this work for last 10 years. They know how to increase the sales. उनके पास B2B, B2C सारे मेथड होते हैं और वो अमेजोन के सिस्टम से वाकिफ़ होते हैं, तो वो सिस्टम में मतलब लॉस नहीं होने देते। तो दैट इज़ हाउ पीपल यू कैन यूज़। एंड वंस यू आर कंफर्टेबल कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन से बड़ा हो गया है, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन पोर्टल ऑल्सो एंड यू कैन कनेक्ट विद योर कस्टमर, क्योंकि तब आपका एक साइजेबल कस्टमर बेस हो जाएगा जो आपसे माल रिपीटेडली ले रहे हैं। तो उनके साथ एंगेजमेंट बना के आप अपना पोर्टल भी शुरू कर सकते हैं। सर, ये ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर का काम किस तरीके से चलता है? सर, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, देर आर एक्सपर्ट्स अवेलेबल हु आर, इनफैक्ट हम भी करते हैं ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। कपल ऑफ ब्रांड्स वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग नाउ, बिकॉज आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि जैसे C&F होता है, C&F माल भर लेता है फिर माल बेचता है, इसी तरह से ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो माल मैन्युफैक्चरर बनाता है, बट ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर उसको बिकवाने में हेल्प करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम परसेंटेज ऑन द सेल्स। तो ही वर्क ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक अकेला अमेजोन नहीं है, हर कंट्री का अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे मिस्टर जसानी हैं, बीरेन जसानी, वो कर रहे हैं कि दुबई में 2 बड़े प्लेटफॉर्म चलते हैं। इसी तरह से लजाडा है ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में कुछ और है, US में कुछ और है, अमेजोन मल्टीपल कंट्रीज़ में है, इंडिया में फ्लिपकार्ट है, नाइका है, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म। तो एज ए मैन्युफैक्चरर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म मैनेज करना। तो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपका मल्टीपल प्लेटफॉर्म मैनेज करता है, उसके पास टूल्स टेक्नोलॉजी होती है, वो आपका सोशल मीडिया भी हैंडल कर लेता है। तो दैट वे ही ऐड वैल्यू टू योर सेल्स। तो ये अलग अलग कंट्रीज में जैसे मटेरियल बेचना है जो भी है, सो वहाँ के प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन कंट्री के लॉ के हिसाब से करना, और ये सब चीजों का भी सब जो चीजें करनी होती है वो सब वो हैंडल करते हैं। यस, वो सारी वो हैंडल करते हैं, क्योंकि वहाँ का लोकल VAT है, कस्टम के कंप्लायंसेज हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग के कंप्लायंसेज हैं। उसके अलावा जैसे इंडिया में अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नाउ कंप्लाई, क्योंकि पेनल्टीज आर वेरी हाई। मतलब फर्स्ट पेनल्टी 50 लाख की है, 5 साल की इम्प्रिजनमेंट है, इट्स वेरी स्ट्रिंजेंट। एंड नाउ मार्केट प्लेस हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल। तो नाउ ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको अपनी मसल्स और डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि मैन्युफैक्चरर को वो प्रॉपर सर्विस दे पाएँ, और वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और ये सब चीजों जो अलग अलग कंट्रीज में जो भी लॉस को अधेर करके प्रोडक्ट बेचा जाता है, वहां पर अगर कुछ बाय एनी चांस लॉ के इसमें कुछ रेगुलेटरी अफेयर्स में कुछ अगर दिक्कत आती है, सो हु इज द रिस्पांसिबल पर्सन फॉर? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें आपका जो एग्रीमेंट है दैट हैज़ टू बी वेरी प्रॉपरली ड्राफ्टेड, क्योंकि अगर आप जब एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट भी बनवाते हैं, तो वहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स फिक्स करते हैं कि भी वंस यू अप्रूव द प्रोडक्ट or you get the product approved, then it is the responsibility of distributor। लेकिन अगर वो आपने अपना ही रजिस्ट्रेशन वहाँ करवाया हुआ है तो उस केस में then you don't need to worry about this, क्योंकि मतलब let me give an example। फार्मेसी, आप कोई फार्मा प्रोडक्ट या न्यूट्रास्यूटिकल बेच रहे हैं अमेरिका में, वहाँ पे US FDA का लाइसेंस चाहिए। अब आपने FDA का लाइसेंस नहीं लिया और आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर, उसने ये अज्यूम कर लिया कि आपने लाइसेंस लिया हुआ है। टुमारो इफ देयर इज ए पेनल्टी, देन यू एज ए मैन्युफैक्चरर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड ही एज ए डिस्ट्रीब्यूटर विल बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज अमेरिकन लॉ विल मेक बोथ द पीपल रिस्पॉन्सिबल। बट इन इंडिया टिल नाउ, बिकॉज 1 अगस्त से नया लॉ अगर आ जाएगा तो उस हिसाब से देखें तो इंडिया में अभी भी मैन्युफैक्चरर को जिम्मेदार ठहराया जाता है, मार्केट प्लेस बाहर निकल जाता है। बट नाउ मार्केट प्लेस एंड इवन ब्रांड एंडोर्सर
अगर उस ब्रांड को किसी ने एंडोर्स किया है और वो बिना परमिशन के किसी कंट्री में बिक रहा है तो उसमें ब्रांड एंडोर्सर की भी जिम्मेदारी आ जाती है. तो इट इज़ वेरी नाउ गेटिंग वेरी टफ इवन इन द मार्केट प्लेस. ऑल द 3 पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं ताकि एवरीबडी वर्क ऑन डिलीजेंट बेसिस. सर आई हैव अ क्वेश्चन. या विकास जी. सर ये मार्केट प्लेस में जैसे कोई जैसे कोई मैन्युफैक्चरर मटेरियल बेच रहा है कंज्यूमर को, ठीक है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल मार्केट प्लेस रहेगा अभी जो एक्ट आ रहा है? नहीं, तीनों रहेंगे ना. एक्ट में उन्होंने डेफिनेशन को वाइड कर दिया है. तो अगर सपोज करिए मार्केट प्लेस में समथिंग इज बीइंग सोल्ड विच इज इलीगल इन इंडिया, टेक एन एग्जांपल, और मे बी लीगल है बट क्वालिटी इज बैड. जो प्रॉमिस किया गया है कंज्यूमर को वो क्वालिटी नहीं मिली, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा. तो कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर को भी पार्टी बनाएगा, मार्केट प्लेस को भी पार्टी बनाएगा, और अगर उस ब्रांड को कोई सेलिब्रिटी एंडोर्स कर रहा है तो वो भी पार्टी बन जाएगा. अच्छा, वो भी पार्टी बन जाएगा. ओके. यस. ओके. जैसे मार्केटर पतंजलि होता है, किसी मैन्युफैक्चरर से पतंजलि जॉब वर्क कराता है. हाँ जी. पतंजलि इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल. यस, क्योंकि वो ब्रांड ओनर है ना. पतंजलि इज ब्रांड ओनर. मैन्युफैक्चरर XYZ मैन्युफैक्चरर है और पतंजलि का रिटेल स्टोर उसको बेच रहा है, और उसके बाद में पतंजलि का वो पर्टिकुलर मान लीजिए मार्केटर है बेसिकली. हाँ, तो मार्केटर की डेफिनेशन में, मार्केटर में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस वो वाइड डेफिनेशन हो गई है. तो मैं उसके ऊपर एक सेशन अलग से प्लान कर रहा हूँ बिकॉज वी आर स्टडिंग इट. देयर आर लॉट ऑफ clauses how it has to be complied with. There are complexity because people are not aware, people are not prepared also. ओके सर. एक और चीज पूछना था. हाँ जी. इसमें सर हमारा जो बिजनेस है दैट इज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड सीड, इट्स अ ह्यूज बल्क बिजनेस. हाँ जी. सर इसमें रेवेन्यू बहुत बड़ा आता है. यस. पार्ट पे, लेकिन मार्जिन बहुत स्लो कम है. हाँ जी. उधार भी होती है. आपको आड़तिये से माल लेना होता है, पैसा आड़तिया देता है तो वो उधार भी करता है, किसान तो देता नहीं है. यस. नहीं, वी हैव अ डिफरेंट मार्केट कि भाई जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे मटेरियल हम परचेज करते हैं और रिटेलर को सेल करते हैं बेसिकली. ठीक है. तो इसमें क्या है, बल्क सेल बहुत बल्क है, रेवेन्यू बहुत फास्ट है, लेकिन मार्जिन बहुत कम है. राइट. क्या इसमें हमने अभी स्टार्टअप जो ई मार्केट प्लेस बना रहे हैं उसमें रेवेन्यू काफी बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं आ रहा है सर. तो इट्स दैट गोइंग, हम उसको मतलब करें, मतलब कैश अर्निंग बहुत है शुरुआत के टाइम में. वी आर क्रिएटिंग अ एंट्री बैरियर फॉर अदर कॉम्पिटिटर्स. आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. सो बेसिकली यू आर सेइंग कि एक पर्टिकुलर एरिया से आप टर्नओवर तो 10 करोड़ का जनरेट कर लेंगे लेकिन प्रॉफिट के मामले में वो 10% से भी कम होगा या उससे भी 5% से भी कम होगा? 1% से भी कम. तो अगर आप इतना कम प्रॉफिट है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें व्हाट मोर वैल्यू एडिशन यू कैन डू टू मेक योर प्रॉफिट मोर. नाउ यू हैव टू गो टू द एंटायर वैल्यू चेन. आप देखिए कि जो आपसे लेके आगे रिटेल में बेच रहा है वो किसान को उधार भी दे रहा है, तो वो वहाँ पे इंटरेस्ट इनकम भी जनरेट करता है. ठीक है, उसका रिटेल मार्जिन भी ज़्यादा है, और आप अल्टीमेटली यू आर इन द लेयर. जैसे मैंने अपने एग्जांपल में बताया कि जो लेयर होती है बीच में वो हर जगह हट रही है टेक्नोलॉजी से. कल को अगर आपकी ब्रांड कंपनी डिसाइड कर ले कि वो अपने ऑनलाइन पोर्टल से ही रिटेलर ऑर्डर कर सकते हैं या कोई मोबाइल ऐप लॉन्च कर दे, तो उस केस में आपका प्ले क्या है? आज की तारीख में आपकी स्टोरी क्या है? आपकी स्टोरी है कैपिटल. That's what we are doing. That's what we are creating a marketplace. Yes. डिस्ट्रीब्यूटर सब चैनल हटने वाला है. ये सब जो है रिटेल पे जा रही है सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां. एग्जैक्टली डेवलप कर रहे हैं जिससे कि हम बहुत कम मार्जिन में काम कर सकें. टर्नओवर बहुत हाई है, मतलब ये टर्नओवर ऐसा है कि भाई एक साल में 1000 करोड़ पहुंच सकता है. तो आपको सर्विस मॉडल लगाना पड़ेगा. देखिए, कंपनी रिटेलर तक नहीं पहुंच सकती, उसको बीच में सर्विस चाहिए. पिक, पैक, शिप, डिलीवरी, कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर क्रेडिट रेटिंग, कस्टमर का कंप्लायंस. आपका कस्टमर रिटेलर है, आपका कस्टमर फार्मर नहीं है. तो रिटेलर की जो प्रॉब्लम है, रिटेलर के पास पैसे नहीं है तो उसको फाइनेंस अरेंज कराना है. वो सब काम, जितना सर्विस आप अपने मार्केट प्लेस में प्रोवाइड कराएंगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, वरना टर्नओवर तो दिखेगा, प्रॉफिट नहीं दिखेगा. वी आर लुकिंग फॉर फंडिंग इन स्टार्टअप. यस. तो इसमें आप पहले प्रोटोटाइप मॉडल पे 1 या 2 मार्केट में, 1 या 2 विलेजेस में, मंडी में, तहसील में, तालुका में आप इसको we have created a first quarter revenue of 10.28 crore. वेरी गुड.
तो वहाँ पे उसको देख के, उसको स्टडी करके देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ए फंडिंग, जैसे आप अमेजोन ने किया था, तीसरे साल में आईपीओ लेके आए थे। क्योंकि उनको मॉडल मिल गया था और उनको मालूम था कि हम आईपीओ से जो पैसा लाएंगे उससे हम तीन स्टेट से हम 30 स्टेट में और 30 स्टेट से 45-50 कंट्री में चले जाएंगे। इसमें सर अगर जैसे फंडिंग के ऊपर नहीं जाते हैं और डायरेक्ट मतलब थोड़ा वैल्यू बनाते हैं, थोड़ा टर्नओवर अगर बनाते हैं 200-300 करोड़ का, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है आईपीओ लाते हैं, फंडिंग पे नहीं दैट इज जाते। बेस्ट, दैट इज बेस्ट। आई थिंक दैट आईपीओ, आई ऑलवेज टेल स्टार्टअप्स कि स्टार्टअप आईपीओ को एंड गेम समझते हैं, जबकि धीरूभाई अंबानी ने आईपीओ से ही गेम शुरू किया था। अच्छा, तो आईपीओ से गेम शुरू होती है, ना कि एंड होती है। तो अगर आप आईपीओ का प्लान अभी कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, बिकॉज 3 साल में आप मॉडल को पका लीजिए। जी, 3 करोड़ का पेड अप कैपिटल इसमें सर नीडेड है, आई थिंक सो। जो भी है वो आई थिंक दैट इज ऑल कंप्लायंस, दैट कैन बी मैनेज्ड। तो वो सारा बट लेकिन ये अच्छा सोच है कि मेरा बिजनेस मॉडल पहले तैयार हो गया, तो अब मैं इसको पब्लिक से रेज करके और देन आई विल टेक इट टू द न्यू हाइट। आईपीओ के बाद फंडिंग पे जा सकते हैं? उसके बाद जरूरत ही नहीं है फंडिंग की। अगर आपका बिजनेस जनरेट कर रहा है प्रॉफिट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस मॉडल शुड जनरेट द प्रॉफिट, देन व्हाई डू नीड फंडिंग? देन तो इन्वेस्टर खुद चल के आएगा कि मेरा पैसा लगा लो, क्योंकि आप तो पैसा बना रहे हो। स्केल अप के लिए सर, स्केल अप के लिए बहुत जरूरी है ना सर फंडिंग। दैट यू कैन ऑलवेज टेक, यू कैन टेक राइट इश्यूज, यू कैन डू अनदर सेकेंडरी इशू। आप ग्लोबल मार्केट में जा सकते हैं, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस ओपन, क्योंकि आईपीओ के बाद में आपकी ट्रांसपेरेंसी प्रूव हो जाती है, आपका ब्रांड क्रिएट हो जाता है मार्केट में। ओके 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 ओके, यस शिव जी, या शिव जी, ये जो आप कह रहे हैं नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है अभी अगस्त में, हाँ जी, तो इसको पढ़ने के लिए, इसको गो थ्रू करने के लिए कहाँ ये अवेलेबल है। मैं आपको जो है आई विल सेंड इट टू यू, दिस इज अवेलेबल। आप गूगल करिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020, यू विल गेट इट डाउनलोड। इट्स अ वेरी स्मॉल डॉक्यूमेंट, 15-20 पेज का ही है, आप इसको पढ़ सकते हैं if you want to, and this is really, I would say, worth reading by everyone, or if you don't understand you can consult with your CA. You can consult with me also if you have any confusion, but this is very very important, because whenever you are dealing with any business or service in India, you should know what are the liabilities which can attach to it. जो ये अभी प्रपोज्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम whatever existing laws with respect to, so वही comparison है वो, we have to see that you know how it was different from other, because पहले तो consumer protection act के दांत ही नहीं थे ज़्यादा, it was a toothless kind of thing। आपने एक्ट में केस फाइल किया, डिसीजन नहीं हो रहा है, nobody is holding responsible, and particularly ब्रांड के केस में ब्रांड में पहले ऑलरेडी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस पे करते हैं, और अगर आपको सर्विस नहीं मिलती है तो एज ए कंज्यूमर योर इंटरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड। बट पर्टिकुलरली जो ब्रांड में जो पायरेसी होती है, ब्रांड में जो फेक ब्रांड क्रिएट किए जाते हैं, उस केस में तो ये और भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट हो जाएगा। मिस एडवर्टाइजमेंट जो होता है, मतलब दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जो पहले नहीं था। ऋषभ जी, बीरेन जसानी हियर। यस सर। हाँ जी, आई हैव वन क्वेश्चन। वो ये है कि हम लोग जब ट्रेडिंग बिजनेस में होते हैं, भले वैल्यू एडेड सर्विसेज भी होता ही है, लेकिन जब मार्केट में वैल्यू एडेड सर्विस का इतना मतलब एप्रिसिएशन ना हो, और ऑन द ट्रेडिंग पार्ट जो मार्जिन मिले वही करीब करीब मिलता हो, तो उस टाइप के बिजनेस में, एंड व्हेन यू हैव कंपटीशन आल्सो एंड यू वांट टू मेंटेन योर लीडरशिप पोजीशन, सो टू कीप योर मार्केट शेयर, आप हर तरह की आइटम में डील करते हैं, क्योंकि आपका मार्केट शेयर बना रहे। तो लेस प्रॉफिटेबल आइटम्स भी होती है, तो कैपिटल लगते ही रहता है। तो कैपिटल लग के लीडर आप रह सकते हैं और हो जाता है, लेकिन when you look at it, your ROI keeps decreasing over a long period of time, and it does in the traditional mold of business. तो ये कहाँ तक ट्रेडिशनल मोल्ड को लेके जाना चाहिए, और कहाँ से ये सोच आनी चाहिए कि now we go on the valuation mode and we leave the cheaper market जहाँ पे मार्जिन इतना नहीं है for other players, and we don't worry about that market share, and we don't worry about that competition also growing stronger, and
कंपटीशन को एस्टेब्लिश नहीं होने देने के लिए हम लोग काफी कुछ करते रहते हैं जो Right. प्रॉफिटेबल नहीं होता है हमारे लिए। तो ये Right. ये डिस्टिंग्विशिंग कैसे करना है, कब करना है, कैसे? देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर भी बड़ा सिंपल है। अभी मैंने बताया जैसे अमेजोन ने मार्केट प्लेस की तरह शुरू किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपना ब्रांड बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनको भी प्रॉफिट बनाना है, उन्होंने ऑलरेडी पब्लिक को जवाब देना है, इन्वेस्टर को जवाब देना है। आप बिजनेस बड़ा कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट बड़ा नहीं है, जैसे कि विकास भाई ने बताया कि हम बिजनेस तो 1000 करोड़ का करेंगे लेकिन प्रॉफिट 2 करोड़ का होगा, तो नो इन्वेस्टर विल बी हैप्पी, इवन यू योरसेल्फ विल नॉट बी हैप्पी कि भी मैं इतना सब करके, इतना रिस्क लेके और इतना कम बना रहा हूँ। तो उसका आंसर ये है कि आपको अपना ब्रांड साइमल्टेनियसली बनाना पड़ेगा। वेदर यू आर इन अ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, तो यू शुड क्रिएट योर ओन ब्रांड बिकॉज यू हैव द कस्टमर हु आर लुकिंग फॉर ब्रांड। आपने बोला कि आप ब्रांडेड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं, so you are not into a normal corporate gifting, but your margins are right now going to the brands which you are promoting. तो वैल्यूएशन तो वो एंजॉय कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको अपनी वैल्यूएशन एंजॉय करनी है तो देन यू हैव टू फाइंड आउट दोज मैन्युफैक्चरर्स who don't have the brand, or you have the brand but they can manufacture for you also as a brand, and that is where the game will start changing it. क्योंकि आपको लगता है कि these 5 category I can definitely sell, why don't I create my own brand? Nobody stops you. You are trading in hundreds and thousands of items whatever your customer is demanding. तो आप अपना ब्रांड वहाँ पे बनाइए। उसमें ब्रांड बनाने के लिए definitely it is an investment, but it's a worth investment because it will give you valuation. Then you can tell your investor that I have this brand, I have 5,000 customers, corporate customer, these are my client, they are buying from me, whether it's a PPE or it's a mask or it's a sanitizer bottle, doesn't matter. If your customer has given you a contract of 5 years, your brand is established. थैंक यू। बट उसमें मुझे ऋषभ जी, मुझे उसमें हाँ जी सॉरी, एक वीरेंद्र जी आपका फॉलोअप क्वेश्चन है, फिर मैं निखिल जी का क्वेश्चन लेता हूँ। नहीं, फाइन, आई एम ओके। निखिल जी। हाँ जी ऋषभ जी, एक चीज बताइए कि जैसे सपोज आपका जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, हाँ जी, उसमें सपोज जो सप्लाई चेन है उसमें 10 स्टेप्स इन्वॉल्व है। हाँ जी। तो जैसे मैन्युफैक्चर हो गया, उसके बाद होलसेल सप्लायर आ गया, फिर बीच में लोकल सप्लायर आ गया या कोई फ्रेंचाइजी आ गया। ये तो डिफॉल्ट किसी भी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ जी, ये सारी चेन इफेक्टेड होगी या हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट? नहीं, इसमें सारी चेन इफेक्टेड नहीं होगी। इसमें उन्होंने कुछ प्रोविजंस और कुछ क्लॉज ऐसे दिए हैं जहाँ से विंडो है बाहर निकलने की, where we can say that we are only doing the trading as a business of trading, then you are not responsible. For example, trading is different than retailing. आप मान लीजिए ट्रक का ट्रक ही बेच रहे हैं ड्राई फ्रूट्स का, और उस ड्राई फ्रूट्स को खा के कोई बीमार हो गया, आपने तो ट्रक खोल के भी नहीं देखा उसमें क्या है, राइट? द अल्टीमेटली द पर्सन हु हैज सोल्ड इज ऑन द काउंटर। चलना नहीं चलना यार तुम। जो रिटेल काउंटर पे 1-1 किलो बेच रहा है, वो पहले रिस्पॉन्सिबल है, उसने सड़ा हुआ माल क्यों दिया। इट मींस अगर हम प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, यानी प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, तो देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। देन you can actually wriggle out from that rigors of कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें से आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बाहर निकलने के। अब जैसे एंडोर्समेंट है, एंडोर्समेंट में एंडोर्समेंट करने वाला फिल्म स्टार बोलता है जी मेरे को नहीं पता, मैंने तो ये प्रोडक्ट कभी यूज़ भी नहीं किया, मेरे पास तो प्रपोजल आया था, मैंने 5 करोड़ रुपए लिए और मैंने अपना वीडियो बनवा दिया। लेकिन कस्टमर ये देखता है कि जब ये इतना बड़ा फिल्म स्टार जो इन्फ्लुएंसर है वो ये प्रोडक्ट यूज़ करता है तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, और वो देख के वो खरीद लेता है। चाहे वो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो खाने की चीज हो। तो प्रमोटर हो गया ना, तो जस्ट लाइक कोई एडवर्टाइज कर रहा है उस प्रोडक्ट। तो उसमें अबेटिंग वर्ड जो है, अबेटिंग वर्ड आ जाता है कि भी यू आर अबेटिंग द अदर पर्सन टू यूज योर प्रोडक्ट। तो उस केस में फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। तो आपको देखना चाहिए था कि ये कंपनी क्या बनाती है, क्या बेच रही है। आपने 5 करोड़ रुपए कमाए हैं तो आप उतना तो देखोगे ना कि भी क्या बेच रहे हो आप। जैसे मेरा एक सेकंड क्वेश्चन हो रहा है कि कोई एक ऐसा फार्मूला है जैसे फंडिंग के लिए जो अक्सर सुनने में आता है, हमने कुछ लेक्चर अटेंड करे हैं, जैसे वर्धमान ग्रुप है लुधियाने में, हाँ जी, उनके पीछे वाइस प्रेसिडेंट का हमने वो कहते जी आईपीओ के थ्रू फंडिंग करना सबसे वर्स्ट है, क्योंकि आप उसको हमेशा के लिए अपना पार्टनर बना लेते हो, उसको आप चाह करके भी डिलीट नहीं कर सकते, कभी उससे निकल नहीं सकते। तो इसके ये जो कोई ऐसा फार्मूला है कि अगर हमें इतनी फंडिंग चाहिए तो हमें आईपीओ में जाना चाहिए, ये इतनी। देखिए
ठीक, मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए, दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां हुई हैं जिन्होंने बड़ी ग्रोथ करी है, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, या अमेजोन हो, या ओयो रूम हो, या फ्लिपकार्ट हो, उनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के साथ मैरी किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको पहिए चाहिए, रॉकेट में फ्यूल चाहिए, तभी रॉकेट उड़ेगा। तो इन्वेस्टर के साथ रिलेशनशिप इज़ मोर पायस देन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, क्योंकि उसमें आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते हो किसी भी वजह से, अगर आपका बिजनेस पब्लिक के लिए रेडी नहीं है, बहुत सारे लोग आईपीओ की प्लानिंग करते हैं, साल 1.5 साल करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो इतनी कंप्लायंस सहन नहीं कर पाएंगे, इतना ओपननेस वो नहीं बता पाएंगे, दिखा पाएंगे, कुछ भी रीज़न रहे, मैं उस रीज़न में नहीं जाता हूँ। तो उनके लिए आईपीओ रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैमिली ऑफिसेज होते हैं जिनमें 4-5 भाइयों का काम है, 2-3 जनरेशन एक साथ काम कर रही है। अब उनमें आपस में सक्सेशन प्लानिंग ही नहीं हो रखी। अब उनको आईपीओ के लिए हम रिकमेंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि पहले उनको अपना घर सेट करना पड़ेगा कि एक ही ब्रांड है, 3 जनरेशन से यूज़ हो रहा है, अब उसका मालिक कौन है। और अगर आपने और 3000 मालिक और डाल दिए तो ये तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी, वो सुलझाने में भी नहीं सुलझ पाएगी। तो यू हैव टू फर्स्ट सेट योर सक्सेशन, योर ओनरशिप क्लियर एंड योर कॉन्शियंस इज क्लियर कि आपको ट्रांसपेरेंट होना है। आपको सेबी भी पूछेगा, आरबीआई भी पूछेगा, पब्लिक भी पूछेगी, शेयर होल्डर मीटिंग भी करानी है, एजीएम भी करानी है, सब कराना पड़ेगा। कंप्लायंस हो तो कराना ही पड़ेगा। तो वो अगर आप कराने के लिए तैयार हो जाते हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए क्या है, आज रिलायंस में हम सभी शेयर होल्डर हैं। तो मुकेश अंबानी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके बाद में वो रात को 11 बजे आपको मेल आती है, आपके पास चाहे 10 भी शेयर है रिलायंस के, लेकिन आपको पूरी कि हमें सारा उनका पूरी चिट्ठी पत्री सारी कुछ आती है उसकी। तो वो 4 करोड़ लोगों को भेज रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा 100 लोगों की टीम बिठा रखी होगी जो ये काम मैनेज करते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक से तभी आपको फायदा मिलेगा, तभी, अदरवाइज आपको आपका शेयर प्राइस बढ़ नहीं पाएगा। ओके, थैंक यू। Any other question? Then I can take some questions which have been asked by the participants only. So they are saying potential benefit of digital platform for business development। देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप बीडी कर सकते हैं, आपको नए क्लाइंट भी मिल सकते हैं। अमेजोन खुद बिजनेस डेवलपमेंट की, मार्केटिंग की आपको प्रोविजन देता है। एंड यू कैन क्रिएट योर ओन मार्केट प्लेस एंड स्टार्ट कलेक्टिंग एड रेवेन्यू ऑल्सो ऑन योर ओन। Then how to delegate and review effectively considering ours is a trading company। I think trading पे ये कह रहे हैं कि हम ERP सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। टैली अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो टैली के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 1000-2000 रुपये महीने की कॉस्ट में आपको ये AI का टूल मिल जाएगा, तो आप ओनर लेवल पे रियल टाइम पे आपको डेटा मिलने लगेगा। इसी प्रकार हाउ टू स्केल ए सर्विस बेस्ड बिजनेस सच एज ए रियल्टर। अगर आप रियल्टर हैं तो रियल एस्टेट में तो सर्विस का बहुत बड़ा स्कोप है। नाउ पीपल वांट मोर सर्विस देन ए प्रॉपर्टी, तो यू कैन ऑलवेज गेट इनटू सम काइंड ऑफ बिजनेस जहाँ पे आप अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री को यू कैन टाई अप विद समबडी हु इज इनटू सर्विस बिजनेस एंड दे विल पुट सम मनी एंड यू कैन स्टार्ट सर्विस अपार्टमेंट ऑफ सर्विस्ड ऑफिसेज। देयर आर मल्टीपल बिजनेस। कोविड-19 के बाद में पीपल आर नॉट लिविंग द बिग ऑफिसेज जहाँ पे मल्टीपल कंपनियां काम करती है। दे वांट देयर ओन ऑफिसेज, स्मॉल बट देयर ओन ऑफिसेज। तो नया मार्केट खुल रहा है। रिलेवेंस ऑफ डिजिटल टूल फॉर मार्केटिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। देखिए, इंश्योरेंस, सीए, अकाउंटेंसी प्रैक्टिस, आपका मार्केटिंग कंटेंट है, आपकी नॉलेज, आपका विजडम और आपका कंटेंट, ये आपको लिंक्डइन, ट्विटर और जो प्लेटफॉर्म है, आपका अपना पॉडकास्ट चैनल, यूट्यूब चैनल। तो मेरा एक कोर्स है डिजिटल 51 डिजिटल स्किल्स, 15 दिन का है। उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि आप उन टूल्स को कैसे बनाएं और कैसे यूज़ करें। तो 51 डिजिटल स्किल्स इन 15 डेज। हाउ टू क्रिएट ए वाइड नेटवर्क इन बिजनेस। नेटवर्क वाइड होना जरूरी नहीं है, उम्र लंबी होनी जरूरी नहीं है, उम्र हेल्दी होनी चाहिए। तो इसी तरह से बिजनेस को वाइड नेटवर्क में डालने की गलती मत करिए। आई नो वन केक शॉप इन माई लोकेलिटी, वो 25,000 रुपये फेसबुक पे खर्च करते हैं, 5,000 लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, सॉरी 5 लाख लोगों को। मैंने उनसे पूछा आप केक कितनी बेचते हो, बोला 100 केक बेचते हैं। तो मैंने कहा आपकी 100 केक तो हमारे एरिया में ही 1400 लोग हैं, आप उन्हीं को बता दो, आपको इतना एडवर्टीजमेंट करने की क्या ज़रूरत है। तो वाइड नेटवर्क की बजाय आप अपने नेटवर्क को डिफाइन करिए कि आपको कितने कस्टमर चाहिए। अगर आप ऑडिटर हैं, आपको कितनी ऑडिट चाहिए, 50 चाहिए, तो उसके लिए आपको 5000 लोगों तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है।
तो डिफाइन योर टारगेट कस्टमर. आप B2B में है, B2C में है. ऑफ कोर्स इफ यू आर इनटू B2C बिजनेस, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज आप म्यूट कर लें फोन को. आई थिंक समबडीज फोन इज, एक मिनट, प्लीज म्यूट द फोन. या नाउ अनदर क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट वाइड नेटवर्क. सो वाइड नेटवर्क की डेफिनेशन उसको डिफाइन कर लीजिए कि मेरा नेटवर्क कौन सा वाइड है और कौन सा मेरा अपना कम्युनिटी है जहाँ पे मैं बिजनेस करना चाहता हूँ. इफ यू आर एन एक्सपोर्टर, यू नो हु आर योर कस्टमर. सो डिफाइन दैट एंड देन create the social marketing strategy around this. How to develop video selling skill. It's a very good, very easy. There are multiple applications. StreamYard है, Restream है, YouTube भी देता है, प्रोवाइड करता है काफ़ी. एंड वीडियो एडिटिंग के लिए there are multiple tools which are easy to use. जैसे आपका KineMaster है, आपका iMovie है, multiple tools. आपको कोई भी जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं. और इवन Adobe का क्रिएटिव एक टूल है जिसमें आपको वीडियो मेकिंग भी बहुत अच्छी मिल जाती है. और यू कैन एंगेज सम वीडियो मार्केटर हु विल क्रिएट वीडियोस फॉर यू ऑन ए फिक्स प्राइस. आप उसको मंथली रिटर्नर रख सकते हैं, बिकॉज वीडियो इज़ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर मार्केटिंग. वो लोगों के, आपके कस्टमर के दिमाग पे उसका काफ़ी गहरा असर होता है, बजाय फ्लायर के. या अब तो न्यूज़पेपर भी लोग मंगाने बंद कर दिए, बाहर कोई जा नहीं रहा है तो बड़े बोर्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. बट यू कैन रीच आउट टू योर टारगेट मार्केट थ्रू इंस्टाग्राम TV, IGTV वगैरह से आप वीडियो सेलिंग कर सकते हैं. अपैरल इंडस्ट्री में क्रेडिट सिस्टम नहीं है, एडवांस पेमेंट कैसे लें. देखिए मैंने आपको बताया, अपैरल इंडस्ट्री में अगर आपका अपना ब्रांड है तो ब्रांड को एडवांस पेमेंट पे लोग माल ले जाके उसका माल बेचते हैं. अगर आप किसी और ब्रांड के लिए बनाते हैं तो आपको कैश फ्लो और क्रेडिट की हमेशा दिक्कत रहेगी. तो यू हैव टू चूज योर बिजनेस मॉडल. अगेन द आंसर इज सेम, चेंज योर बिजनेस मॉडल सो दैट यू बिकम more efficient in the current time. I am interested in automating my business. How should I plan to take my business independent? देखिए बिजनेस कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता है. बिजनेस तो बिजनेसमैन के भरोसे ही चलता है, लेकिन बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो ऑटोमेट हो जाती हैं. आपकी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, बिलिंग प्रोसेस है, ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस है, सेल्स प्रोसेस है, आपकी कस्टमर एंगेजमेंट है, आपकी एम्प्लॉय की जो रेटिंग की प्रोसेस है, देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस. उनको आप सबको ऑटोमेट कर सकते हैं और आपके पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा. आपको आपका समय बचने लगेगा और समय बचेगा तो आप बिज़नेस बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं. वरना ज़्यादातर बिजनेसमैन बिजनेस प्रोसेस में लगे रहते हैं, बिजनेस में कम लगते हैं, बिजनेस प्रोसेस में ज़्यादा लगते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से. एंड वी डू लॉट ऑफ कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग, कोचिंग मेरा नया पैशन है जो मैं अभी पूरा कर रहा हूँ. लॉकडाउन के समय में थोड़ा समय बचता है तो आई स्टार्टेड दिस. बट प्रोसेस ऑटोमेशन और कंसल्टिंग हम करते हैं. एंड these are my details. I will share the presentation also with you. And if you have any question, first of all, thank you very much for joining this, and I hope you like this, and you can share your detail to make other people friend. And can you repeat answer of how to delegate and review? Okay. तो सचिन बूटा जी पूछ रहे हैं कि कैसे डेलीगेट करना है, रिव्यू कैसे करना है. वेरी सिंपल, देर आर CRM टूल्स अवेलेबल एंड देर आर टीम टूल्स ऑल्सो अवेलेबल. उसमें आप टास्क लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं. गूगल इज़ वेरी स्मार्ट इन दैट मैनर. गूगल का G Suite अगर आपने ले रखा है तो उसमें आपको गूगल टास्क और गूगल कैलेंडर, इससे आप पूरा डेलीगेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं एट ए नेग्लिजिबल कॉस्ट. उसमें कोई कॉस्ट नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी नेग्लिजिबल कॉस्ट, बट इट विल इफेक्टिवली इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर टीम. तो वो मेरी डिजिटल जो 51 डिजिटल स्किल्स है उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं बताता हूँ. आई एम इन गुड़गांव. जितेंद्र जी, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में विच मॉडल इज़ बेस्ट? मैन्युफैक्चरिंग में अपना ब्रांड बनाइए और ऑनलाइन अमेजोन के साथ या उसको एस्टेब्लिश कर लीजिए. उसके बाद आप अपने स्टोर भी खोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना बड़ा उसको कितने समय में कितना बड़ा करना चाहते हैं. पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अपना ब्रांड ज़रूर बनाइए, ये मैं कहूँगा, क्योंकि वो वोकल फॉर लोकल में वही बहुत ज़रूरी है. अच्छा, आकाश जैन जी, आपका जो क्वेश्चन है, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन. allow me to ask my question, sir. फ्रेंचाइजिंग के रिलेटेड क्वेश्चन, हमने 4 बिजनेस मॉडल्स डिस्कस किए. उसमें आई थिंक फ्रेंचाइजिंग अकेला है जो नॉन डिजिटल है, बाकी तीनों ही डिजिटल थे. तो फ्रेंचाइजिंग भी एज अ मॉडल एडवाइजेबल नहीं है, या कुछ टाइम में फ्रेंचाइजिंग कम होगी? फ्रेंचाइजिंग इज नॉट द बेस्ट वे फॉरवर्ड. आई गॉट योर पॉइंट. देखिए, फ्रेंचाइजी डिजिटल है और हो चुका है. अब वो जमाना खत्म हो गया जब आप फ्रेंचाइजी को खुला छोड़ देते थे कि वो अपने तरीके से बिलिंग कर रहा है और दूसरे 4 ब्रांड भी रख के बेच रहा है. अब फ्रेंचाइजिंग अगर आप करना चाहते हैं अपने ब्रांड की, तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना है.
आपको फ्रेंचाइजिंग सॉफ्टवेयर जो है अपना ही देना है। अगर आपके 200 फ्रेंचाइजी हैं तो उनका ऑर्डरिंग सिस्टम सेंट्रलाइज कर दीजिए, उनका अकाउंटिंग सिस्टम, उनका बिलिंग सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम, वो एक सिंगल सिस्टम बना दीजिए। देयर आर मल्टीपल सिस्टम, जैसे पेडल प्लस है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी चीप। उसमें एक फ्रेंचाइजी 10-12 हज़ार रुपये में साल में ही वो जो है उसका पूरा ऑटोमेशन, मतलब 10,000 रुपये मंथ में उसका फुल्ली ऑटोमेशन ERP विद मोबाइल ऐप एक्सेट्रा हो जाएगा, जो कि वो खुद कभी नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या है कि आपका डिजिटाइजेशन से आपका अपने फ्रेंचाइजी पे कंट्रोल हो जाएगा। आपके पास MIS आएगी, कौन फ्रेंचाइजी अच्छा कर रहा है, कौन कमज़ोर पड़ रहा है। जो कमज़ोर पड़ रहा है उसको वापस उठाना है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फ्रेंचाइजी लोकेशन बदलनी पड़ेगी। जनरली ये सब करने से आपका ब्रांड बिल्ड होता है। अगर आप उसको ऑफलाइन छोड़ देंगे तो फ्रेंचाइजी में सक्सेस नहीं आएगी। फ्रेंचाइजिंग में एक और मुझे जो लगता है वो प्रॉब्लम आती है कि जैसे बाकी जो बिजनेस मॉडल में, हाँ, एग्रीगेटर और मार्केट प्लेस में जो हमारा जिससे हम पैसे ले रहा है फ्रेंचाइज ओनर, मतलब उसमें हाँ जी, सेल होएगी तो आपको पैसे देने हैं, उसका कट होता है, उसका परसेंटेज होना है। वर्सेस राइट। फर्स्ट डे फ्रेंचाइजिंग फीस होती है, काफी अच्छी मोटी होती है वो, तो उसको जस्टिफाई करना भी एक मुझे लगता है प्रॉब्लम होती है। उसी का आंसर है कि अगर आप टेक्नोलॉजी में एज ए फ्रेंचाइजर, अगर आप फ्रेंचाइजी आगे दे रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी अपने पास रखिए ताकि आप उससे फीस ले पाएंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग अपने पास रखिए, ब्रांडिंग अपने पास रखिए, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट अपने पास रखिए, देन योर फ्रेंचाइजी विल पे। क्योंकि उसका वो खर्चा जो सेल्स एंड मार्केटिंग का 15 से 17% का जो खर्चा होता है टिपिकली बिजनेस में, वो खर्चा आप बियर कर रहे हैं और आप इसको एग्रीगेटेड खर्चा कर रहे हैं, तो पर यूनिट पर फ्रेंचाइजी कॉस्ट कम हो जाती है। तो that is how you should build your proposition to sell your franchisee more. Understood, sir. The realtor question was my own. Actually, we are a real estate company, and I was exploring the idea of franchising because मैंने सोचा कि aggregator और marketplace like Magic Bricks etc. are still there, but and not very successful, and they have become advertisement companies now. Primarily मुझे लगा उसका एक तो क्योंकि बहुत महंगी होती है, obviously property कपड़े खरीदने जितना आसान नहीं है, और कहीं तक required होता भी है। इसलिए I was wondering that franchising may be a good way forward for it, but I was also myself not able to justify कि अगर मुझे फ्रेंचाइजी लेनी, और ऑनेस्टली मैंने करा क्योंकि कुछ कंपनी को फ्रेंचाइजीज बेच रही थी, जैसे कि वीमैक्स, मैं उनके पास ऐसे बन गया कि चलो मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए आपका, मुझे बेचो। मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि मुझसे वो 10 लाख रुपए फर्स्ट डे पे फ्रेंचाइजी फीस मांग रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड आई वाज वंडरिंग दैट हाउ वुड आई पोटेंशियली जस्टिफाई दिस। वो ये कि फ्रेंचाइजी में 80% फ्रेंचाइजी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पहले पैसा, एक्चुअली वो कैपिटल रेज करना चाहते हैं फ्रेंचाइजी से, तो फ्रेंचाइजी के पास पैसा होता है, उसको बिजनेस करना होता है, तो उससे वो पैसा ले लेते हैं। लेकिन अगर वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं तो वो फ्रेंचाइजी भी नहीं चलता है, और वो अल्टीमेटली फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी का रिलेशनशिप डिस्प्यूट में चला जाता है। तो उसको अगर वो ना जाए, उसके लिए आपको विन विन मॉडल बनाना है। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेसी चार्ट बनता है। रेसी चार्ट आपको फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में डाल देना चाहिए कि भैया ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये मेरी है, ये काम तुम करोगे, ये मैं करूँगा, और इसमें तुम्हें मैं सवाल कर सकता हूँ कि तुमने क्यों नहीं किया, और तुम मेरे काम पे सवाल कर सकते हो, क्योंकि ब्रांड कॉमन है। ब्रांड की वैल्यूएशन किसकी है, वैल्यूएशन में से मेरे को क्या हिस्सा मिलेगा। अब तो ये भी सवाल आते हैं कि सपोज करिए मैं एक स्कूल का फ्रेंचाइजी बना रहा हूँ, तो अगर मेरी स्कूल का ब्रांड आगे बढ़ गया तो मेरे को एज ए फ्रेंचाइजी तो कोई गेन ही नहीं हुआ, जबकि मैंने ब्रांड बनाने में हेल्प करी है, तो उल्टा तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो these are the very genuine question which are people are asking, those who are aware they are asking, and they get equity also in the overall game. Good. Any other question anyone have? I think some people, Sanjeev Nanda ji, anybody who want to ask question, मेरा email ID भी मैंने दिया है। अगर आप एक मिनट, कुछ क्वेश्चन आए हैं, प्लीज़ गाइड मी अबाउट अपॉइंटिंग ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, ये हम बात कर सकते हैं प्रकाश जी, ऑफलाइन वी कैन टॉक। कैन यू रिपीट आंसर ऑफ हाउ टू डेलीगेट, ये मैंने कर दिया, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू माई email ID इफ एनीवन हैज एनी डाउट। ये प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर दूंगा, बट आप अपनी टीम के साथ ये डिस्कशन ज़रूर करें कि एक मीटिंग बुलाएं अपनी टीम के साथ, वर्चुअली या फिजिकली, जैसे भी आप कर सकते हैं, कि आपका करंट बिजनेस मॉडल और आपके कंपटीशन का बिजनेस मॉडल और दुनिया में वो काम कैसे हो रहा है, इसको आप ज़रा स्टडी करिए। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। घंटे 2 घंटे की डिलिब्रेशन है, लेकिन उससे आपको बहुत चीज़ें
सामने आएंगी. इट्स अ रिसर्च and primarily Silicon Valley and America, why they are successful brand builder, because they do a lot of research and they love doing research. And research is not Google. Google is search. Research is primary. Go to your customer, go to your team, go to your employee, go to your vendors and ask them what they feel about your business, how they feel about the business. There is no worry in asking your own people कि वो अपने बिजनेस को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं तो क्यों करते हैं. आंसर वहीं से निकल जाएगा. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक 8:16 हो गए. वी हैव सरपास्ड आवर टाइम. तो 8:30 आई हैव अनदर discussion with Brahm Kumaris today. I am getting into a call with them. They have invited me to speak about this. So we are working on agriculture. So as a farmer, 8th generation farmer, my ambition, my passion and vision is to develop 1 million hectare of land in India. तो उसके ऊपर कुछ बातें करेंगे. वहाँ भी farming is very noble profession. Thank you very much for attending this, and I hope it was useful for you. Keep in touch with you, sir, as an agriculturist. Basically. Definitely, and I request that life is digital and business is physical. इसको उल्टा कर लेते हैं. Life should be digital, physical and business should be digital. ताकि yes, और उससे फिर क्या है कि हेल्थ भी बनी रहेगी और वेल्थ भी बनी रहेगी. yes. हम लोग एक मॉडल हाइड्रोपोनिक फार्म का मॉडल तैयार कर रहे हैं. ओके. पॉली हाउस बेस्ड हाइड्रोपोनिक्स. ग्रेट. तो आपका हाइड्रोपोनिक फार्म में जो पॉली हाउस है आपका मतलब ग्रो करके और सिटी में सप्लाई करने का प्लान है ब्रांड बना के, या आप डेवलप करना चाहते हैं लोगों के लिए जिनके पास फार्म हाउस है? क्या प्लान है आपका? मॉडल तैयार कर रहे हैं और मतलब ओन सेलिंग भी होगा और प्लस हम लोग मॉडल तैयार करेंगे दूसरा. मुकेश भाई, आप कौन से सिटी में हैं इंडिया में? कौन से स्टेट से हैं? सॉरी, चेन्नई. ओके, वंडरफुल. देखिए, इसमें 3 मॉडल हैं. एक आपका होम किट है जो घर में बालकनी में लोग लगा सकते हैं, घर में कमरे में वर्टिकल फार्म में उगा सकते हैं अपने लिए, अपने फ्रेंड और पड़ोसियों के लिए. एक इसमें मॉडल है जहाँ पे आप फार्म हाउस में लगवाइए, और एक आप अपना ब्रांड बना के हाइड्रोपोनिक का स्टोर खोल लीजिए ब्रांड बना के, जिसमें आपके मल्टीपल स्टोर भी होंगे और आप उसको फैसिलिटी एक जगह से 1 एकड़ से शुरू करके धीरे धीरे आप बड़ा कर सकते हैं. 1 एकड़ का खर्चा 80-90 लाख करोड़ का आता है. उसमें स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह भी काफ़ी दे देती है. मतलब हम लोग अभी ये लॉकडाउन में मेरा बेसिकली काम था OEM सप्लाई करना. ओके. सप्लाई इज वेरी मच नॉट चल नहीं रहा है बराबर से. राइट. नहीं, हाइड्रोपोनिक्स बहुत अच्छा काम है, फ्यूचरिस्टिक काम है. मैं तो खुद एक क्लाइंट है मेरे, उनको मैं एडवाइस कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से. हम लोग इस पे बॉम्बे में प्लान कर रहे हैं बड़ा, गुड़गांव में भी बड़ा प्लान कर रहे हैं. तो हमने काफ़ी मॉडल स्टडी किए, एंड दिस इज़ द फ्यूचर बिजनेस, नो डाउट अबाउट इट. क्योंकि लोगों को हेल्दी खाना है और उनको जीरो टच डिलीवरी चाहिए. इसमें कोई टच नहीं है. आप अपना उगाइए और अपना खाइए, और बहुत बढ़िया है ये बिजनेस. इट्स अ वेरी गुड बिजनेस. मैं आई विल गेट इन टच विद यू वंस श्योर. रेडी. हाँ, आप जरूर, कोई भी आपको पूछना हो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.